وہ ابیرہ کی زندگی کی دعا مانگنے کے لیے ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ سامنے ہی جامع مسجد تھی جہاں جمعہ کی اذانیں فضا میں گونج رہی تھی۔ قدم خود بخود اس گھر کی طرف لے جا رہے تھے جہاں دستک دینا اس نے اس لڑکی سے سیکھا تھا۔ وہی تو تھی جس نے اسے نمازوں کا پابند بنایا تھا، جسے دیکھ کر اسے اللہ کی طرف لو لگانی تھی۔ آج اسی اللہ نے اس کی زندگی مانگنے کے لیے وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مسجد کے صحن میں ہر طرف نمازیوں کا ہجوم تھا۔ وہاں وہ چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے جو عام دنوں میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے تھے، لیکن آج جمعہ کی ادائیگی کے لیے سبھی چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر آریان کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری کہ انسان کتنا عجیب ہے، اپنے مطلب اور فائدے کے لیے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ہفتے کے 6 دن اپنی مصروفیات کی نظر کر کے 7ویں دن ایک نماز ادا کرنا اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مور کا سر کر لیا ہو۔ وہ خود بھی تو انہی میں سے ایک تھا۔ آج اسے اپنی منافقت پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو کر فخر محسوس کر رہا تھا جن کے سجدوں کی بنیادوں ہی صرف ضرورت پر کھڑی تھی۔ وضو خانے کی طرف بڑھا تو وہاں کافی رش تھا۔ اسے چند سیکنڈز کے لیے رکنا پڑا، مگر یہ چند لمحے اس کے لیے عام نہیں تھے۔ یہ وہی آریان خان تھا جو کسی بھی قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا، جسے لوگوں کے پیچھے رکنا گوارا نہ تھا، لیکن اس وقت اسے ایک عجیب سا اندیکھا سکون مل رہا تھا۔ اسے اس بات سے اذیت نہیں تھی کہ وہ قطار میں ہے، لیکن بلکہ اسے اس بات کا احساس شرسار کر رہا تھا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنی شاید ابیرہ کی رفاقت کے لیے اسے خاموشی سے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ابیرہ ہی تھی جس نے اسے سکھایا تھا کہ رب کے سامنے لائن میں لگنا ہی اصل بادشاہی ہے، اور یہ بادشاہی کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی اس کے پوروں سے مس ہوا تو جیسے آریان کے اندر تپش کچھ کم ہونے لگی۔ وہ ایک ایک عضو کو ویسے ہی دھو رہا تھا۔ وضو سے فارغ ہو کر اس نے مسجد کے بڑے حال میں قدم رکھا۔ اندر کی فضا میں ایک خاص قسم کا سکون اور عطر کی ہلکی سی مہک رچی بسی تھی۔ آریان نے گہری سانس لی کہ باہر پھیلی آئی سی یو یہاں سے خاموشی ہسپتال کی آئی سی یو جان لیوا خاموشی سے بالکل مختلف تھی۔ وہ پہلی صفوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ جھکنے کے لیے صرف کمر کا دوہرا ہونا کافی نہیں ہوتا، دل کا جھکنا اصل بندگی ہے۔ اور یہ سبق اسے اس لڑکی نے پڑھایا تھا جو اس وقت خود زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، مگر اسے رب کے سامنے کھڑا کر گئی تھی۔ مسجد کا وسیع حال نمازیوں سے بھر چکا تھا۔ آریان ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ منبر پر بیٹھے امام صاحب کا خطبہ شروع ہو چکا تھا جن کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ اللہ کی رحمت اور آزمائش پر صبر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آریان نے محسوس کیا کہ یہاں کا ماحول دنیاوی شور و غل سے کتنا کچ کر ہے۔ ہر شخص اپنے رب کی جانب متوجہ تھا۔ کوئی تسبیح کر رہا تھا تو کوئی سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ جمعے کی اس مخصوص گھڑی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خطبہ ختم ہوا تو سب نے ایک ساتھ صفیں درست کی۔ آریان بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب امام صاحب کی تکبیر بلند ہوئی تو اللہ اکبر، تو آریان کو لگا جیسے اس نے اپنی تمام پریشانیاں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ رکوع اور سجدوں کے اس تسلسل میں وہ اس جسمانی تھکن محسوس نہیں ہوئی جو پچھلی کئی گھنٹوں سے ہسپتال کے کوریڈور میں محسوس کر رہا تھا، بلکہ ہر سجدہ اس کی بوجھل دل کو ہلکا کر رہا تھا۔ امام صاحب نے جب مخصوص عربی دعاؤں کے بعد رقت آمیز لہجے میں اردو میں دعا شروع کی تو آریان کو لگا جیسے اس کے دل کے بند ٹوٹ گئے ہوں۔ مسجد کا حال آمین کے صداؤں سے گونج رہا تھا، لیکن آریان کے لب ساکت تھے، صرف اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ دعا ختم ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، مسجد خالی ہونے لگی، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ اب بھی دعا کے لیے پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی قیمتی شے کا دامن تھامے کھڑا ہو۔ ایک ایک کر کے سب نمازی جا چکے تھے، یہاں تک کہ مسجد کے خادم نے پنکھے بھی بند کر دیے تھے، لیکن آریان اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ رب سے کیا مانگ رہا تھا؟ وہ تو جیسے خود کو وہاں بھول آیا تھا۔ وہ کوئی عام دعا نہیں تھی، وہ ایک بندے کا اپنے مالک سے کیا جانے والا وہ سودا تھا جس میں اس نے اپنی انا، اپنا غرور اور اپنی زندگی کی تمام تر خوشیاں ابیرہ کی ایک سانس کے عوض داؤ پر لگا دی تھی۔ خالی مسجد کی خاموشی میں اس کی دبی دبی سسکیاں واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ آج کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر بن کر بیٹھا تھا، اور ایک فقیر خالی ہاتھ لوٹتا نہیں جانتا۔ اسے اپنے رب سے ابیرہ کی زندگی چاہیے تھی، اس کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ امام صاحب آریان کے قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آریان کے شانے پر رکھا تو آریان نے لرزتی پلکوں کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر جمی اذیت کو آنکھوں کی سرخی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ بیٹا اٹھو، شاباش۔ امام صاحب کی آواز میں ایک مانوس سی نرمی تھی۔ تمہارے یہ تڑپ بتا رہی ہے کہ تم نے جو بھی مانگا ہے بڑے دل سے مانگا ہے،
और रब कभी दिल से निकली हुई पुकार को रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह वो तुम्हारी सुनेगा, बस इस डर से कभी मायूस नहीं होना। वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। आर्यान ने लब भींच लिए। इसे महसूस हुआ जैसे इमाम साहब के लफ्ज़ इसके अंदर ठंडक उतार रहे हों। इसने खामोशी से सर झुकाया, अपना चेहरा हाथों से साफ किया और खड़ा हो गया। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो इसे फ़िज़ा बदली हुई लगी। वो बोझ जो इसे अस्पताल से लाया था अब कहीं गुम हो गया था। सामने अस्पताल की सफ़ेद इमारत धूप में चमक रही थी। आर्यान ने एक गहरी सांस ली और इस इमारत की तरफ बढ़ गया जहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग जारी थी, मगर अब इसके साथ एक अनदेखा भी चल रहा था। इसे लग रहा था इसके अंदर का बोझ वहीं सजदे के निशान पर रह गया है। इसे बचपन में सुनी वो बात याद आई जो कभी महज एक मौर का लगती थी, मगर आज इसकी हकीकत इसके सामने खुली थी। सच ही तो कहा गया है कि मिलता है क्या है नमाज में सर को झुकाकर देखकर। बस इसने आज सिर्फ सर नहीं झुकाया था, अपनी अना और अपना गुरूर भी इसी चौखट पर रख दिया था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि बंदगी सिर्फ हाथ बांधकर खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देने का नाम है। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर इसने रुककर एक बार फिर पीछे मुड़कर मस्जिद की बुलंद मीनार को देखा। इसे लगा जैसे वहां से वो अकेला नहीं आया, बल्कि खामोश तसल्ली इसे अपने साथ लाती महसूस हो रही थी। उसने अबीरा के लिए मांगी गई दुआ को एक बार फिर अपने दिल में दोहराया और आईसीयू की तरफ जाने वाली लिफ्ट का बटन दबा दिया। आर्यान अस्पताल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का माहौल बदला हुआ था। डॉक्टरों और नर्सों की गैर मामूली भागदौड़ और लोगों का इज़्तिराब देखकर वो अंदर तक लरस गया था। इसके कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो गई थी। अभी कुछ देर पहले मस्जिद में जिस सुकून ने इसे ढांपा था, अब वही सुकून किसी अनदेखे खौफ में बदलने लगा था। या अल्लाह खैर, इसके लबों से सरगोशी निकली। इसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। इसे तो अबीरा को खो देने के तसव्वुर से ये खौफ अदा कर देता था। वह इस वक्त अस्पताल की ये अफरा तफरी इसे किसी बड़ी अनहोनी का पता दे रही थी। इसे लगा जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन सरक रही हो। वो आईसीयू के सिमत भागा जहाँ राहदारी में मौजूद लोगों की नज़रें से मज़ीद बेचैन कर रही थी। आर्यान ने जैसे ही लपक कर आईसीयू के भारी दरवाजे को धकेलना चाहा, एक वार्ड बॉय ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसे रोक लिया। सर प्लीज़, आप अंदर नहीं जा सकते। उसके लहजे में सख्ती और उजलत दोनों थी। आर्यान ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर इसकी नज़रें अंदर के मंजर पर जमी थीं, जहां डॉक्टर्स अबीरा के बेड के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। नहीं होते समझे, मेरी बीवी अंदर, मुझ पर रूल्स अप्लाई है, ये कोई नहीं रोक सकता। सर, आप समझने की कोशिश करें, इमरजेंसी रूम है और अंदर पहले ही बहुत रश है। आप बाहर इंतज़ार कीजिए। वार्ड बॉय ने मजबूती से दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यान वहीं साकत खड़ा रह गया। दिल तो चाह रहा था कि इस वार्ड बॉय का मुंह तोड़ डाले, मगर वह ऐसा कभी नहीं कर सकता था। जो अबीरा के इलाज में रुकावट बने, ये इसकी फितरत के बिल्कुल बरअक्स था। मगर आज इसने खुद को रोका। अबीरा की खातिर दरवाजे के छोटे से शीशे से इसे सिर्फ सफ़ेद कोट और तेज़ी से हिलते नहात नजर आ रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे इसका वो सुकून वो मस्जिद से समेट कर लाया था, रेत की तरह उंगलियों से फिसल रहा था। आर्यान का सर घुटनों पर झुका हुआ था। ज़ब्त और बेबसी का बोझ इसके कंधों पर महसूस हो रहा था। तभी किसी ने आहिस्तगी से इसके कंधे को थपथपाया। सर प्लीज़, परेशान ना हो, आज के लिए तो खुशखबरी है। आवाज़ कानों से टकराई तो आर्यान ने तड़प कर सर उठाया, जैसे किसी ने नींद में डूबे किसी शख्स को झंझोर दिया हो। सामने वही वार्ड बॉय खड़ा था, मगर इस बार इसके लहजे में वह सख्ती ना थी। सर, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह खतरे से बाहर है। अंदर जो हलचल थी वो दरअसल डॉक्टर्स की पूरी टीम की कोशिश थी कि मरीज़ को स्टेबल किया जाए। और सर, आपके साथ जो लोग थे अंदर पहले ही अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए आपको रोकना पड़ा, माफ़ कीजिएगा। आर्यान के सीने में बंद सांसें यकबारगी आज़ाद हो गई थी। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर रखा भारी पत्थर उठाकर फेंक दिया हो। इसने आहिस्ता से आंखें मूंद ली। जहन के किसी गोशे में मस्जिद की वो खामोशी फिर जिंदा हो उठी। इमाम साहब की आवाज़, वो अल्फाज, वो लम्हा जब इसने आजिज़ी से रब के सामने सर झुकाया, इसे आज समझ आया कि बंदगी का सिला क्या होता है। रब से किया गया सौदा घाटे का कभी नहीं होता। आंखों के किनारे से आंसू ढलक पड़े, मगर इनमें खौफ की तलखी ना थी। ये तश्कर की वो नमी थी जो रूह को धो देती है। डॉक्टर ने तबरेज़ खान के शाने पर हाथ रखकर एक गहरा सांस लिया। इनके चेहरे पर इत्मीनान की लहर साफ देखी जा सकती थी। बहुत बहुत मुबारक हो खान साहब, अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को नई ज़िंदगी बख्शी है। ये समझ लें कि अबीरा मौत को छोकर वापस आई है। तबरेज़ खान की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू छलक कर रुखसारों पर बह निकले। वो कुछ कहने के लिए लब हिलाए, मगर लफ्ज़ों के बजाय सिर्फ आंसू ही आंखों से बाहर आ रहे थे। डॉक्टर इनको हौसला देते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे थे, जैसे वो अब इस ख़ानदान को इनकी खुशी के लम्हे सौंपना चाहते हों।
बेड पर अबीरा का वजूद साकत था, मगर इसकी आंखें अब खुली थी। वो होश में तो थी, लेकिन पलकें भूचल थीं, जैसे वो अभी भी बहुत तवील और थका देने वाले सफ़र से लौटी हो। इसकी नीम व आंखों में ज़िंदगी की रमक देखकर तबरेज़ खान का दिल बोझ से हल्का हुआ। शुक्र है अल्लाह का, बेहद शुक्र, उन्होंने लरसते लहजे में दोहराया। कमरे के एक कोने में खड़ी अरूप, जो अब तक सांस रोके ये सब देख रही थी, इसने अपनी दुआ के लिए अंदाज में सीने पर रख दिए। इसकी नज़रें एक पल के लिए अभी अबीरा के चेहरे से नहीं हट रही थी, जैसे इसे अब यकीन न आ रहा हो कि इसकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया है। देखें, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ अब मज़ीद रश नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स ने फ़ाइल बंद करते हुए तबरेज़ खान को ताकीद की। मरीज़ को किसी भी किस्म की जहनी या जिस्मानी टेंशन नहीं देनी, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन से वापस लौटी हैं। तबरेज़ खान ने खामोशी से सर हिला दिया। डॉक्टर ने एक बार फिर अबीरा की जानिब देखा और जाते जाते दोबारा जताया, इस रूम में हजूम की इजाज़त नहीं है। बहुत जल्द हम इन्हें वार्ड में मुंतकिल करेंगे, मगर तब तक आपको हमारे साथ ताउन करना होगा। आप सब बारी बारी मिल लें, मगर अंदर से कोई एक ही रुक सकता है, डॉक्टर ने ताकीद की। तबरेज़ खान ने अकीदत और एहतराम से डॉक्टर की तरफ देखा। इनके लहजे में एक बाप की इल्तिजा थी। जी जी डॉक्टर, हम समझ सकते हैं, बस ज़रा अपनी बेटी को देख लें। आंखें तरस गई थी इसे होश में देखने के लिए। डॉक्टर ने तबरेज़ खान के शाने पर हमदर्दी से हाथ रखा और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। इनके जाते ही कमरे में जैसे सांस लेने की जगह बनी, मगर हर कोई अबीरा के करीब जाने के बजाय इसे दूर से ही देखकर रब का शुक्र अदा कर रहा था। डॉक्टर जैसे ही कमरे से बाहर निकले, अरूप के सब्र का बंधन टूट गया। वो तेज़ कदमों से बेड की तरफ बढ़ी और अबीरा के सराहने जा बैठी। इसके चेहरे पर बेतहाशा ममता, तड़प और जुदाई का गला एक साथ उमड़ आया था। इसके पास कहने को बहुत कुछ था, मगर लोगों से एक लफ्ज़ भी अदा ना हो सका। सिर्फ इसकी आंखें थी जो माँ की तड़प की कहानियाँ सुना रही थी। वो किसी दीवाने की तरह अबीरा का माथा चूमती तो कभी इसकी बंद होती बोझल आंखों पर लब रखती। इसके हाथ लरस रहे थे। वो यकीन करना चाह रही हो कि सामने मौजूद वो वाकई सांस ले रहा है। इसने कभी इसकी ठंडी रंगत वाले गालों को छुआ तो कभी इसके बेजा हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। इसकी खामोशी में एक और शोर था, वो शोर जो सिर्फ एक माँ का दिल सुन सकता है जब इसकी औलाद मौत के मुंह से वापस लौटी हो। अबीरा ने आहिस्ता से अपनी पलकें खोलकर माँ के इस लम्स को महसूस किया, मगर नकाहत इतनी थी कि वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। पूरे कमरे में अरूप की सिसकियों और शुक्रगुजारी की एक अजीब सी बू फैल चुकी थी। अबीरा होश में थी, वो सब देख रही थी। इसके सामने इसके माँ बाप थे, वो हस्तियाँ जिनकी दुआओं को दूर रहते हुए भी हमेशा अपने साथ महसूस करती थी। इसका जी चाह रहा था कि वो उठकर इन्हें बताए कि वो कितना खुश है, मगर कमज़ोरी इस कदर थी कि ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। आंखें बोझलपन से बार बार बंद हो रही थी। आखिर गोली इसके दिल को छूकर गुजरी थी। ये कोई मामूली ज़ख्म नहीं था, मगर अल्लाह ने इसे ज़िंदगी की तरफ मोड़ दिया और इसके लिए अभी इतना ही काफ़ी था। इसने अपनी बोझल नज़रें अपनी माँ से हटाकर सामने खड़े बाबा के चेहरे पर टिका दी। तबरेज़ खान वहीं खामोश खड़े थे। इनका चेहरा आंसू से तर था, मगर वो साकत थे। वो एक बाप था जो खामोश से माँ बेटी को अपनी ममता लुटाते देख रहा था और ख़ुद जैसे किसी गहरे हिसार में कैद था। बाप की खामोशी में जो अजियत और फिर जो शुक्रगुजारी थी अबीरा से साफ महसूस कर रही थी। इन दोनों के दरमियान अल्फाज की ज़रूरत नहीं, इनकी नज़रें एक दूसरे से वो सब कह रही थी जो शायद ज़ुबान कभी ना कह पाती। अबीरा के उलझे हुए जहन में अचानक वो तल्ख यादें पैदा हुई जो आर्यान ने इसके कानों में उंडेल दी थी। तबरेज़ खान तुम्हारा सगा बाप नहीं है। इन अल्फाज ने इसके ज़ख्मों में जैसे एकदम से कोई तेज़ सुई चुभोती हो। बाबा, बड़ी मुश्किल से इसके नीले पड़ते लब हिले थे। ये लफ्ज़ अदा हुआ तो मगर इसमें छुपी तड़प पूरे कमरे की फ़िज़ा को बोझल कर गई। अबीरा ने कांपते हुए अपने हाथ को उठाने की कोशिश की जो डिप की नालियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। वो अपने बाबा को पुकार रही थी जैसे कोई डूबता हुआ तिनके का सहारा ढूंढता है। मेरी जान, मैं यही हूँ। तबरेज़ खान तूफ़ान की तरह तेज़ी से आगे बढ़े और अपनी बेटी का वो नक़ीब सा हाथ अपने दोनों मजबूत हाथों में थाम लिया। अबीरा को लगा जैसे इसे कोई महफूज पनाहगाह मिल गई हो। बाबा ने हाथ का लम्स से तमाम शकूक व शबात से दूर ले गया हो। आर्यान ने इसके गिर्द बंद कर दिए। ऐसे महसूस हो रहा था कि इसका बाप कितना महफूज होता है, इतना महफूज कि बेटी को अपने बाबा के करीब जाकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी और कोने में मैसर नहीं। इसने बोझल नज़रों से अपने बाबा को देखा और सोचने लगी कि क्या दुनिया की सब बेटियां यही महसूस करती हैं? क्या सबके लिए बाप की आगोश इतनी ही बेखौफ होती है? आप मेरे बाबा हैं ना? नरा की कैफियत से लड़ती इसके लहजे से लहू की बू आ रही थी। इसने ये सवाल नहीं किया था, बल्कि जैसे अपनी हस्ती की गवाही मांगी थी। मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी तुम पर फिदा। तबरेज़ खान ने तड़प कर इसे देखा। इनके लहजे में ममता जैसी तड़प और बाप जैसा मान था।
मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ अबीरा, ये कैसा सवाल है मेरी जान। उन्होंने झुककर अपनी बेटी के माथे पर शफकत से लब रख दिए। बाप के इस लम्स में वो तमाम जवाब मौजूद थे जिनकी तलाश में अबीरा का जहन भटक रहा था। इस एक बोसे ने आर्यान के बोए हुए तमाम कांटे अबीरा के दिल से खींच लिए थे। अबीरा के ज़ब्त का बंधन टूट गया। इसकी आंखों से गर्म आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे। ये आंसू इस कर्ब के थे जो आर्यान की बातों से मिला था, और ये सुकून भी इस बाप की आगोश में था। वो अब तक अपनी मानती आई थी। इसने अपने बाप के हाथ को अपनी गिरफ्त में मजीद कस लिया था, जैसे वो अब कभी महफूज पनाहगाह को छोड़ना नहीं चाहती थी, या खो देने से डर से घबरा रही हो। अबीरा ने नज़रें झुकाकर अपने हाथ की पुष्प पर रख के अपने बाबा के हाथ को देखा। आर्यान से वो जहरीले अल्फाज अब भी इसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। आर्यान, आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे बाबा नहीं हैं? इसने दिल में सोचा, मगर इसका वजूद जो इस वक्त सोच की नफ़ी कर रहा था। इसे महसूस हुआ कि इन पूरों से जो मोहब्बत रिश्ते हुए इनके खून में शामिल हो रहे हैं वो किसी सगी औलाद के हक़ से कम नहीं थी। वो सोच रही थी कि अगर इनकी रगों में दौड़ने वाला खून एक नहीं है तो फिर इस लम्स में इतना सुकून, इतना तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत कहाँ से आई। अनजान लफ्ज़ों में छुपी सच्चाई एक तरफ और इस वक्त अपने सामने खड़े शख्स की आंखों में छलकती तड़प एक तरफ। अबीरा का दिल गवाही दे रहा था कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ लहू पर नहीं होती, बल्कि इस एहसास पे होती है जो इस वक्त तबरेज़ खान की मौजूदगी में मिल रहा था। इसने गहरी कपकपाती सांस ली। आर्यान की फैलाई हुई नफरत की धुंध बाप की इस बेलोस मोहब्बत की रोशनी में छटने लगी थी। रोना नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं रोना। तबरेज़ खान ने झुककर अबीरा के गालों पर लरसते आंसू को अपने पूनों से चुना था। इसने अपने लहजे में कई ज़ब्त टूटे थे, मगर अब वो इसके लिए ढाल बनकर रह गए थे। तुम्हारा बाबा आ गया है ना, सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम्हें अब खुद को कोई तकलीफ़ नहीं देनी, अपनी जान पर अब मज़ीद जुल्म नहीं करना मेरा बच्चा। अरूप जो बेड की दूसरी जानिब अबीरा के करीब बैठी थी, बाप बेटी के दरमियान इस ताल्लुक़ को देखकर मज़ीद रोने लगी। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर वो ये बोझ नहीं था जो इसे अब तक मार रहा था। ये खुशी के वो आंसू थे जो मिन्नतों के बाद आंखों में उतरते हैं। अरूप ने अबीरा के दूसरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर इसे सीने से लगाया। इसे लग रहा था कि इसके आंगन की उजड़ी हुई रौनक आज दोबारा लौट आई है। कमरे में फ़िज़ा की अब किसी भारी अजियत के बजाय पुरसुकून बंदगी में ढल रही थी। अबीरा की बोझल नज़र एक बार फिर से कमरे के दरवाजे की तरफ उठी, जैसे वो किसी तलाश कर रही हो। माहिद कहाँ है? अपने भाई को कमरे में ना पाकर इसके लहजे में एक अनजानी सी तड़प उभरी थी। वो इस वक्त अपने इस भाई का हिसार चाहती थी जिसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठता था। अरूप ने इसके माथे पर बिखरे बाल हटाते हुए नरमी से जवाब दिया, वो तुम्हारी कुछ ज़रूरी रिपोर्ट लेने लेबॉर्ट्री गया होगा बेटा, अभी आता ही होगा। तबरेज़ खान ने भी तायद में सर हिला दिया। हाँ अबीरा, वो तो एक पल के लिए भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं था। वो तो डॉक्टर्स ने कुछ ख़ास टेस्ट कहे थे जिनके लिए इसे खुद जाना पड़ा। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है, बस अभी रिपोर्ट लेकर पहुँचता ही होगा और तुम्हें होश में देखकर इसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अबीरा ने सुकून से आंखें मूंद ली। इसे पता था कि माहिद इस वक्त किस कदर भाग दौड़ कर रहा होगा। इसके दिल में भाई के लिए मोहब्बत की एक लहर उठी। वो जानती थी कि जब तक इसके बाबा और माहिद जैसे मजबूत सहारे इसके साथ हैं, कोई भी तूफान अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबीरा का दिल किसी अनजाने सुकून की गिरफ्त में था कि वो आखिरकार अपनों के दरमियान पहुंच गई, मगर सी लम्ही यादों के दरीचे किसी तूफान की तरह खुले। इसके दिमाग में वो सारा मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया जब यारम और आर्यान एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो गोली जो हादसाती तौर पर इसके वजूद में पेवस्त हुई थी, इसका कर्ब इसे दोबारा अपनी पूरों में महसूस हुआ। इसने झटके से आंखें खोल दी। एकदम से इसे याद आया कि वो तो आर्यान के सोने के पिंजरे में कैद थी, तो फिर वो यहाँ कैसे पहुँची? इसके बाबा और मामा यहाँ कैसे आ गए? वो आर्यान के बारे में कुछ पूछने ही वाली थी कि कमरे का भारी दरवाज़ा खुला। आर्यान अंदर दाखिल हुआ था। इसके चेहरे पर अबीरा के लिए ऐसी फ़िक्र और पछतावा था कि अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आंखों में तैरते आंखों की आंसू इसकी अंदरूनी टूट फूट का पता दे रहे थे। तबरेज़ खान की नज़र आर्यान पर पड़ी तो इनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। इनकी आंखें सुर्ख हो गई थी और लहजे में वो जलाल उतरा जिसने आर्यान के कदमों को फर्श से जकड़ दिया था। वहीं रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना। तबरेज़ खान की गरजदार आवाज़ ने कमरे के सुकून को चीर कर रख दिया था। खबरदार जो मेरी बेटी के करीब भी आए तुम। आर्यान की नज़रें अबीरा के जर्द चेहरे पर जमी थी, मगर तबरेज़ खान के गुस्से ने इसके और अबीरा के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे अबूर करना इस वक्त नामुमकिन था। प्लीज़ मुझे एक बार इसे मिलने दें, मैं भी इतनी ही तकलीफ़ में हूँ जितने आप। आर्यान की आवाज़ पछतावे की वजह से लरस रही थी। तकलीफ़? तबरेज़ खान के लहजे में गुस्से की चिंगारियाँ थीं। तुम तकलीफ़ बांटने वाले नहीं, तकलीफ़ पहुँचाने वाले हो।
میری بیٹی کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے اور اب تم پلیز میری بات سنیں۔ آریان نے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں التجا کی، مگر تبریز خان کا جلال کم نہ ہوا۔ خاموش رہو تم، اسے مزید اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم مجھے دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ تبریز خان نے آریان کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے دروازے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ابھی کہ ابھی اس کمرے سے باہر نکلو۔ ابیرہ نے اپنے خشک لبوں کو حرکت دی اور اس کی آواز نقاہت کی وجہ سے بمشکل نکل رہی تھی۔ بابا رکے، مگر اس کی کمزور پکار تبریز خان کے غصے کے شور میں دب گئی اور آریان کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ ابیرہ کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماما پلیز بابا کو روکیں، وہ بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کر پائی تھی۔ اروب نے اس کے بالوں کو سہلایا، مگر اس کے چہرے پر کوئی لچک نہیں تھی۔ نہیں روک سکتی بیٹا، کسی سلوک کے لائق ہے۔ اس شخص کی وجہ سے ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں اسے آج اپنی حقیقت دیکھ نہیں ہوگی۔ تم پریشان نہ ہو، تمہارے بابا سب دیکھ لیں گے۔ اروب نے ابیرہ کی پریشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر اور ہر دکھ سے محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ ابیرہ کے لبوں پر آریان کا نام مچل رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی کہ جس شخص کو وہ باہر نکال رہے ہیں اور اس سے محبت کرتا ہے، اس ایک ایسی دیوانگی والی محبت جس نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آریان سے اب کوئی گلہ نہیں، مگر لفظ اس کے حلق میں آ کر دم توڑ رہے تھے۔ تکلیف کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی اور لو بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ پر دھند سی چھانے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا جسم اس کی روح تک کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ اپنے بابا کا ہاتھ تھام کر آریان کے حق میں کوئی گواہی دے سکے، مگر اس کی پلکیں بوجھل ہو کر گرنے لگیں۔ اس کا سر تکیے کی ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ وہ آریان کی محبت کا بھرم کھولنا چاہتی تھی، اسے بے گناہ ثابت کرنا چاہتی تھی، مگر نکاہت نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ اس کی نیموا آنکھوں کے سامنے آریان کا وہ فکر مند چہرہ آخری بار لہرایا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ ابیرہ میری جان، اروب نے اسے بے سدھ ہوتے ہوئے دیکھ کر تڑپ کر پکارا تھا۔ خان پلیز چھوڑیں اسے، دیکھیں ابیرہ کو کیا ہو رہا ہے۔ اروب کی دہائی نے تبریز خان کو قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا ایک پاؤں ابھی دروازے کی چوکھٹ سے باہر ہی تھا کہ وہ بدحواسی میں واپس پلٹے۔ آریان جس کی سانسیں پہلے ہی اٹک رہی تھیں، ابیرہ کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ پوری طرح سے حواس کھو بیٹھا۔ وہ کسی طوفان کی طرح ڈاکٹرز کے کمرے کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں ڈاکٹر کی ٹیم دوبارہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی وہ خاموشی ایک بار پھر سے کسی اندیکھے ڈر اور مشینوں کے شور میں بدل گئی۔ اسی اثنا میں ماہر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں رپورٹ تھی اور چہرے پر یہ خوشی کہ اس کی بہن ہوش میں آ چکی ہے۔ آتے ہوئے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ گرنے لگے۔ ابھی چند لمحے پہلے کی خوشی پل بھر میں ماتم جیسی خاموشی میں بدل گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے ہنگامی بنیادوں پر معائنہ شروع کیا اور ایک جھٹکے سے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ آپ سب باہر جائیں پلیز، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آئی سی یو کا وہ بھاری دروازہ ایک بار پھر سے ان کے درمیان دیوار بن گیا۔ باہر راہداری میں اب 4 وجود تھے، ایک باپ جو اپنے غصے اور دکھ کے درمیان لرز رہا تھا، ایک ماں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ساکت تھی، ایک بھائی جو ابھی بھی ملی خوشی کے چھن جانے پر ششدر تھا، اور ایک آریان جو دیوار سے ٹیک لگائے دھیرے دھیرے ٹوٹ کر زمین پر بیٹھتا جا رہا تھا۔ راہداری میں عجب خاموشی کا راج تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے سینوں میں دھڑکتے دلوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ تبریز خان، اروب، ماہد اور آریان سب کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ رشتوں کے تمام تر تلخیاں، غصہ اور نفرت اس بند دروازے کے باہر دم توڑ چکے تھے۔ اس وقت کسی کو اس کی اپنی انا کی فکر نہ تھی، کسی کی خطا یاد تھی۔ سب کے لبوں پر، سب کے دلوں میں صرف ایک ہی التجا تھی کہ ابھی وہ انہونی نہ ہو۔ وہ معجزہ جو چند لمحے پہلے اپنی جھلک دکھا کر گیا تھا، وہ یوں ہی پلک جھپکتے ہی چھن نہ جائے۔ ماہر دیوار سے سر ٹکائے مسلسل کچھ بڑھ رہا تھا، جبکہ اروب کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ آریان کی حالت سب سے بدتر تھی۔ وہ زمین پر بیٹھا خالی نظروں سے فرش کو تک رہا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار ماننے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو، مگر اس کا دل اب بھی کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آئی سی یو کے باہر کا وہ ہال اب ایک عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں 4 مختلف انسان ایک ہی مقصد کے لیے اپنے رب کے سامنے سوالی بن کر کھڑے تھے۔ گاؤں کے ماتھے پر پھیلے ہریالی سے لدے کھیتوں کے بیچ اس قدیم پیپل کے درخت کی چھاؤں تلے آج کوئی جرگہ نہیں سجا تھا، بلکہ شمشیر لالا کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ نئی بچھائی گئی 4 پائیوں پر پڑی اجلی چادریں، وہ وہاں کا نکھرا ہوا ماحول اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج یہ بیٹھک کسی خاص پنچایت کے لیے نہیں، بلکہ معزز مہمانوں کی خاطرداری کے لیے ہے۔
बीचों बीच लगी बड़ी कुर्सी पर शमशीर लाला बैठे थे। कल्फ लगा सफ़ेद कड़क लिबास, कंधे पर वक़ार से डाली गई चादर और सर पर रिवायती अंदाज में बंधी बुलंद पग इनकी रोबदार शख्सियत को मज़ीद निखार रही थी। इनकी आंखों में बला की तेज़ी और चेहरे पर ऐसा जलाल था कि साथ बैठे ख़ास मेहमान भी इसके दबदबे को महसूस कर रहे थे। इनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि गुफ्तगू के दौरान भी इनकी इंसाफ पसंद तबीयत की धाक साफ दिखाई देती थी। अभी बातों का सिलसिला जारी था कि एक दिल दहला देने वाली चीख ने फ़िज़ा का पुरसुकून सुकूत छीन लिया। लाला, गज़ब हो गया लाला, मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खस्ता हाल कपड़ों में मलबूस बूढ़ा किसान गफूर अपने हवास खोए हुए धूल उड़ाता हुआ इस खास महफिल के बीचों बीच आकर आ गिरा। इसके आंसू चेहरे की झुर्रियों में जज्ब हो रहे थे और आवाज़ में ऐसी दुहाई थी कि जैसे रूह निकाल कर रखती हो। शमशीर लाला, मेरी बेटी, मेरी मासूम बच्ची का खून कर दिया गया। लाला, मैं बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया लाला, मेरा सब कुछ लुट गया। गफूर का सर शमशीर लाला के कदमों के करीब गिरा तो मेहमान समेत सब पर मौत जैसी खामोशी तारी हो गई। शमशीर लाला की गिरफ्त अपनी लाठी पर मजबूत हुई और माथे पर गुस्से की वो लकीरें उभरी जो किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा थी। शमशीर लाला के माथे पर उभरी रखें इनके अंदर छुपे तूफ़ान का पता दे रही थी। गुस्से की शिद्दत से इनकी आंखें तपते हुए कोयलों की मानिंद सुर्ख हो गई। वो एक झटके से अपनी जगह से उठे जिनसे इनकी रोबदार शख्सियत का जलाल मेहमानों पर भी लर्ज़ा तारी कर गया था। उन्होंने झुककर गफूर के लरसते शानों पर अपने मजबूत हाथ रख के और इसे सहारा देकर खड़ा किया। उनका लहजा धीमा था मगर हद दर्जा ठोस और काटदार था। गफूर, शमशीर के होते हुए इस ज़मीन पर किसी की इतनी मजाल? उन्होंने गफूर की आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा, नाम बोलो, किसने अपनी मौत का आवाज़ दी है? गफूर ने लरसती हुई आवाज़ शमशीर लाला की आंखों में झांका जहाँ भी इंसाफ का जलाल उतर रहा था। मोहम्मद बख्श के बेटे ने लाला, अल्लाह, इसके बेटे ने आपके किसी फैसले को नहीं माना। इसने मेरी बेटी को बेदर्दी से मार कर अपनी तरफ ये किस्सा ही ख़त्म कर दिया है। वो समझता है कि वह आपसे इंसाफ से भी ऊंचा हो गया है। शमशीर लाला के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट रेंग गई जिसमें गुस्से से ज़्यादा हक़ारत थी। उन्होंने गर्दन मोड़कर सामने खड़े अपने ख़ास आदमी को देखा। इनकी आवाज़ में वो गूंज थी जो पूरे गाँव का सुकून छीन लेने के लिए काफ़ी थी। जाओ, इस चीज़ की हवेली के घसीटते हुए यहाँ लाओ। उन्होंने एक पल का तौक़ुफ़ किया और फिर बर्फीले लहजे में इजाफा हुआ और मोहम्मद बख्श का कहना कि आज इसका बेटा लौटेगा नहीं बल्कि इसका अंजाम लौटेगा। आज इस पीपल के नीचे सिर्फ इंसाफ होगा, कोई रायत नहीं। गफूर की आवाज़ में वो शिकस्तगी थी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसकी नम आंखों से इन हरियाली से लदे खेतों की तरफ देखा जो इसे बंजर महसूस हो रहे थे। लाला, मैंने तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। अब कोई भी इंसाफ, कोई भी तरीका मेरी बेटी को तो वापस नहीं ला सकता। उसने गहरी आह भरी और अपनी लरसती हथेलियों को देखा। मैं डरता था इस दिन से लाला कि इस ज़माने में गरीब होना ही सबसे बड़ी सज़ा है। हम जैसे लोगों की तो सांसें भी ताकतवर की मर्ज़ी से चलती हैं। शमशीर लाला ने गफूर के इन जुमलों पर कोई जवाब न दिया मगर इनकी खामोशी गफूर के बैन से ज़्यादा हौलनाक थी। उन्होंने सिर्फ एक निगाह अपने कारिंदों पर डाली जिसका मतलब वाज़ेह था, इन्हें मोहम्मद बख्श के बेटे को लाने का हुक्म मिल चुका था। मगर अब की बार शमशीर लाला की खामोशी ये बता रही थी कि आज वो सिर्फ एक बाप को इंसाफ नहीं देंगे बल्कि गरीब होना सज़ा है, इसके तसव्वुर को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। परेशान आज सुकून की गहरी नींद सोई थी जैसे बरसों की थकन एक रात में उतर गई हो। सूरज की किरणें कमरे में रोशन हो चुकी थी मगर इसका बेदार होने का दिल नहीं चाहना था। एक तरफ अपने मनपसंद शख्स से निकाह की वो सरशारी थी जिसने इसकी रूह तक को महका दिया था और दूसरी तरफ इस शख्स से हमेशा के लिए नाता टूट जाने का वो रिलीफ जो कि कभी इसे पसंद नहीं रहा था। वो रिश्ता जो मंगेतर के नाम पर तलवार की तरह मुसलसल इसके सर पर लटकता रहता था अब किस्साए पारीना बन चुका था। आज की सुबह इसके लिए सिर्फ एक नई तारीख नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी का अनुमान थी। इसके चेहरे पर फैला इत्मीनान बता रहा था कि इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन मौका जीत लिया है। परीचे ने एक भरपूर अंगड़ाई ली और बिखरे बालों में उंगलियां फेरकर इन्हें दुरुस्त करती हुई बेड पर बैठ गई। इसके चेहरे पर खुशी की वो अनोखी चमक थी जो सिर्फ दिली मुराद पाने वालों के नसीब में आती है। लबों पर शायान का नाम किसी मीठे रस की तरह घुल रहा था और आंखें अब भी इन ख्वाबों की खुशबू से महक रही थी जो इसने सारी रात शायान के साथ बने थे। इसने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और धड़कते दिल के साथ इसका नंबर मिलाया। वो इस लम्हे बस इसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, ये यकीन करने के लिए कि अब वो वाकई इसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है। परीशे,
पहली ही बहल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। शयान इतनी बेकरारी, वो बेड से पुश्त से टेक लगा गई थी। लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर दूसरी तरफ से आने वाली खामोशी ने इसकी मुस्कुराहट को वही मुजम्मद कर दिया। बेकरारी तो है परिशे, मगर ये बेकरारी मेरे दिल में अपनी बेटी से मिलने के लिए है। मैं फ़िलहाल इसे कोई और रंग मत देना। शायान का लहजा सपाट और बर्फ़ की तरह ठंडा था। परिशे का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। शायान, आप इस तरह मेरी तौहीन नहीं कर सकते। रात भी आपका रवैया यही था और अब फिर वही बात है। मैंने कह दिया है ना कि मुलाकात करवा दूंगी, फिर ये लहजा क्यों? इसकी आवाज़ में नमी और गुस्सा बराबर का था। मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा परिचय, और ना ही मैं कभी ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ। शयान का लहजा आपके साकन था, जैसे किसी ठहरे हुए दरिया में कोई लहर ना हो। बात सिर्फ इतनी है मिस परिचय कि जिस बात का आपने वादा किया था, मेरे ख्याल में आपको पहले इसे पूरा करना चाहिए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए किस कदर बेचैन हूँ। परिचय दूसरी तरफ खामोश होकर रह गई थी, मगर शायान ने इसे संभलने का मौका न दिया और अपनी बात जारी रखी और माज़रत के साथ, जब तक मेरी बेटी से मुलाकात नहीं हो जाती, मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। मैं शायद इन पर पूरा नहीं उतर सकूँगा। फ़ोन बंद हो चुका था। परिचय ने मोबाइल बैग पर पटक दिया और नम आँखों से सामने दीवार को तकने लगी। वो शायान जिसकी मोहब्बत में इसने ज़माने की परवाह नहीं की थी, आज इसकी बेटी की वजह से अपने से दूर कर रहा था। वो बेटी जिसके होने का इसने खुद बताया था। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, जब तक आप मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं करते हैं, मैं आपकी बेटी से हरगिज़ नहीं मिलवाऊंगी। वो खुद कलामी करते हुए इस कदर बुलंद आवाज़ में बोली कि गुस्से और हिजान में इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इसकी बातें कमरे के बाहर तक जा रही हैं। निकाह किया है, बीवी हूँ आपकी। जब तक अपना हक वसूल नहीं करूँगी, जब तक आप मुझे इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखेंगे और मुझसे मोहब्बत का दावा नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको आपकी बेटी तक रसाई हासिल नहीं होने दूंगी। इसके आखिरी अल्फाज अभी ही फ़िज़ा में ही थे कि दरवाजे पर खड़ी इसकी माँ के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो तुम पर। तुमने किससे निकाह कर लिया और कब किया? बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। वो तेज़ कदमों से कमरे में दाखिल हुई और बेड पर बैठी परिचय का जबड़ा दबोच कर इसे बुरी तरह झंझोड़ डाला। परिचय के लिए ये सब इतना अचानक था कि एक लम्हे को इसके होश उड़ गए। ओहो, क्या हो गया है आपको? किस तरह मारने पीटने पर तुल गई हैं? इसने तड़प कर अपना जबड़ा इनकी गिरफ्त में से छुड़वा लिया। इसकी आंखों में तकलीफ से ज़्यादा बगावत की चमक थी। वो जो भी थोड़ी देर पहले ख्वाबों की दुनिया में थी, अब अपनी माँ के सामने मुजरिम की तरह नहीं, बागी की तरह खड़ी थी। निकाह किया है कोई गुनाह नहीं, और अगर कर भी लिया है तो ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आप आबे से बाहर हो रही हैं। इसके लहजे की काट ने इसकी माँ को मज़ीद आग बगोला कर दिया। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इनकी तरबियत का ये सिला मिलेगा। तुम में रत्ती भर भी शर्म है? चोरी छुपे निकाह कर लिया और अब मुझसे पूछ रही हो कि कौन सा गुनाह कर दिया? इनकी आवाज़ गुस्से से थरथरा रही थी। क़यामत तो तब टूटेगी परिचय, जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा कि तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा। तुम मर क्यों ना गई? पैदा होते ही मर जाती तो मुझे ये दिन ना देखने को पड़ते। उन्होंने बेबसी से अपना सर पीट लिया। हाय अल्लाह, मैं अब लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगी? तुम आर्यान की बचपन की मंगेतर थी। तुम जानती हो कि अगर इसे पता चला तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों कत्लो गारत होगी? क्या यहाँ जंगल का कानून है? परिचय का लहजा तीखा हो गया। 2026 में जी रहे हैं हम, और मजाल है जो हमारा ख़ानदान इन दकियानूसी सोचों से बाहर निकल आए। एक लड़की ने अपनी पसंद से निकाह कर लिया तो खून खराबा? हद है। वो अपनी माँ की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, न लहजे में कपकपाहट, न निगाह में झिझक। सच कहते हैं कि जिन्हें माँ बाप फ़ख्र से पढ़ाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, वही एक दिन इनके पैरों तले से ज़मीन खींच लेते हैं। आज ये कहावत सच लग रही है मुझे। इनके चेहरे पर गुस्से के साथ वो शर्मिंदगी भी थी जो ख़ानदान के सामने पहुँचने से पहले ही इन्हें अंदर से खाई जा रही थी। मगर परिचय को अपनी माँ का ये कर बेमायनी सा लग रहा था। वो इस वक्त एक ऐसी उड़ान के लिए पर तोल रही थी जिसकी मंजिल सिर्फ इसकी अपनी ज़िद थी। इसे बस आर्यान को ये दिखाना था कि इसने इसे ठुकरा कर किसी और को चुना है। इसकी अना को अपने कदमों तले रोंदना था, और इसी इस ज़िद में वो इतनी दूर निकल आई थी कि अब पलटना शायद मुमकिन ना रहा था। अब ये तो वक्त बताएगा कि शयान से मोहब्बत भी आर्यान से जान छुड़ाने की ज़िद थी या सच में मोहब्बत थी, क्योंकि ज़िद की आग में जले हुए फ़ैसले अक्सर इसी वक्त अपना असल चेहरा दिखाते हैं, जब ज़िंदगी इन्हें आज़माती है। और ज़िंदगी आज़माती ज़रूर है। तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगा?
परीक्षा ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डाली और एक लम्हे के लिए भी ना झिझकी। नहीं, मुझे डर नहीं लगा, और लगना भी क्यों चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी है और मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया है। तुम जैसी औलाद होने से बेहतर था कि हमारी कोई औलाद ना होती। जुमला तीर की तरह आया। परीक्षा ने इसे अपने सीने पर लिटा लिया, महसूस किया, और फिर इसे ठहराव के साथ बोली, मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। क्या अपनी हस्ती मिटा दूँ, जहर खा लूँ? इसने अपनी माँ के चेहरे पर लिखी खौफ की इबारत को सर्द निगाहों से पढ़ा और आगे बोलती चली गई। तो सुन लें, मैं ऐसी कोई हमाकत नहीं करने वाली, और अगर आपकी नज़र में मैं इतनी गिर चुकी हूँ तो फिर ये भी तय है कि यहाँ से जाने के बाद मैं पलटकर इस मुल्क की मिट्टी पर कभी कदम नहीं रखूँगी। अपने शौहर के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये वो एक लम्हे को रुकी, फिर इसके होठों पर हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट उभरी, और आर्यन खान से निमटना मेरे शौहर का काम है, आपका सर दर्द नहीं। आपने तो सारी उम्र अपनी बहन के लिए, बहन के बेटे के साए में सांस लिया है, इसी खौफ में जीती रही हैं, मगर मैं इस खौफ के जीने से इनकार करती हूँ। परीक्षा की इस हट दर्मी पर इसकी माँ ने कर्ब से नफ़ी में सर हिलाया। आंखों में बेबसी थी, तासुब था, और कुछ और भी था, जैसे शायद माँ का दिल ही जानता है। तुम जैसी औलाद अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना थे परिचय। ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना बेहतर था। इनका लहजा इस कदर शिकस्ता था कि कमरे की फ़िज़ा बोझल हो गई थी। जो शौहर के सहारे आज इतना अकड़ रही हो, दुआ करना कि वो सहारा रेत की दीवार साबित ना हो। गैरत की जंग जब लड़ी जाती है ना, तो ये बड़े बड़े दावे करने वाले मर्द सबसे पहले अपनी गर्दन बचाते हैं। ये मेरा तजर्बा है कि खाली बात नहीं। उन्होंने एक सर्द भारी आह भरी निगाह परीक्षा पर ठहरी, और फिर उन्होंने वो जुमला कहा जो शायद बरसों तक परीक्षा के कानों में गूंजता रहे, अड़ लो, जितना उड़ना हो उड़ लो, मगर याद रखना, जिस आसमान को तुमने चुना है वहाँ से गिरने वाले का निशान भी बाकी नहीं रहता। आप कैसी माँ हैं, आप तो बद्दुआओं पर उतर आई हैं, मगर अब आप मुझे आपकी इन बद्दुआओं से डर नहीं लगता। परीक्षा ने तीखे लहजे में अपनी माँ की बात काटी। इसके चेहरे पर मौजूद बेजारी साफ बता रही थी कि वह अब इसके जज्बाती दबाव से निकल चुकी है। बचपन से आप यही तो करती आई हैं। जब भी आर्यन का नाम आता है आप हमेशा मुझे गलत ठहराती हैं और बद्दुआओं का सहारा लेती हैं। शुक्र है इस मनहूस इंसान से मेरी जान छूटी। उसने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अपनी बात जारी रखी, और आप बेफिक्र रहें, जिसका मैंने इंतखाब किया है इसमें ये सिर्फ देखकर ही इसे चुना है कि वो डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसने अपनी ज़िंदगी बहुत समझदारी से महफूज कर ली है। मेरे मरने की दुआएं मांगने से बेहतर है कि आप मेरा पीछा छोड़ दें और मुझे खुश रहने दें। तुम्हें रत्ती बराबर शर्म है कि तुम अपनी माँ से किस लहजे में मुखातिब हो? बदतमीज़, यही सिखाया है तुम्हारी तालीम ने। इनकी आवाज़ लरज रही थी। तालीम का नाम तो मत लें आपको तालीम से क्या लेना देना। आप तो इन पुरानी रिवायात की असीर होकर महज मंगेतर वाला रिश्ता टूटने पर बद्दुआएं देने पर उतर आई हैं। अब आप क्या जाने ये जो जदीद ज़माना और पढ़ाई। मेहरबानी करें और मेरे कमरे से चली जाएं। ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी माँ ने गुस्से से दिल मिलाकर इसे खामोश कर दिया। मैं जा रही हूँ और जाकर तुम्हारे बाप को ये खुशखबरी देती हूँ कि इनकी बेटी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। अब वही देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। वो गुस्से से पाँव पटकती और दरवाजे को ज़ोर से पछाड़ते हुए बाहर निकल गए, जबकि इनके पीछे परीक्षा की बाग़ियाना मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। इन्हें क्या करना है वो तो आपके इशारों पर चलते हैं। जो आप फैसला करेंगी वही वो भी मान लेंगे। अगर आप चाहेंगी तो मुझे बेटी बनाकर रख लेंगे, वरना आपके इशारे पर मुझे आग करके हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर देंगे। परीक्षा ने जाते हुए भी अपनी माँ के असाब पर एक गहरी चोट मारी थी, जिसका जहर इनकी रूह तक उतर गया था। खुदा तुम्हें गारत करे परीक्षा, घर खो जाओ तुम। उन्होंने पलटकर इसे देखा। इनकी नज़रों में अब दुख नहीं बल्कि वो शदीद नफ़रत और बद्दुआ थी जो बरसों की ममता को राह कर चुकी थी। वो मज़ीद कुछ कहे बिना निकल गई, मगर इनकी आवाज़ की गूंज कमरे में मौजूद इस घुटन को मज़ीद हौलनाक कर गई थी। बदतमीज़ी तो फिर बदतमीज़ी ही सही। अब के जो हो गई तो कभी पलट कर नहीं आऊँगी। वो अपनी माँ के जाने के बाद खाली कमरे में ख़ुद से बड़बड़ाते हुए सर थाम कर बेड पर बैठ गई थी, और गुस्से और हिजान की शिद्दत से इसके आसाब को शल कर दिया था। कमरे में अब से इसकी तेज़ सांसों की आवाज़ गूंज रही थी, मगर इसकी अना अब इसे ये एहसास दिलाने में मसरूफ़ थी कि इसने जो किया वही दुरुस्त था। पीपल का वो कदीम दरख्त सदियों से इस ज़मीन के दुख सुख का गवाह था। आज इसकी घनी छाँव तले फैली खामोशी और ही रंग लिए हुई थी।
शमशीर लाला अपनी लाठी पर दोनों हाथ टिकाए साकत बैठे थे, ना हिले ना बोले, मगर इनकी यही खामोशी वहाँ बैठे हर शख्स के सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह धरी थी। उजली चादर में बैठे मुअज़्ज़िज़ीन के लफ्ज़ सिले हुए थे और फिज़ा में गफूर की दुहाइयों की राख उड़ रही थी। पगडंडी पर उड़ती धूल और जीप की गड़गड़ाहट ने खामोशी का सीना चाक कर दिया था। गाड़ी के रुकते ही कारिंदों ने मोहम्मद बख्श के इकलौते बेटे को बाजू से दबोचकर बाहर खींचा। कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में वही जंगालूद तकब्बुर था जो शायद इसे विरासत में मिला था। इसे घसीटते हुए जिरगे के ऐन वक्त में लापटका गया। लाला, ये रहा गुनाहगार। कारिंदे ने इसे धक्का दिया तो वो ज़मीन पर गिरा, मगर उठते हुए इसने जिस बेनियाजी से कपड़े झाड़े और गर्दन सीधी करके शमशीर लाला की आंखों में आंखें डाली, वो वहाँ मौजूद हर शख्स के माथे पर पसीने लाने के लिए काफ़ी था। ये क्या तमाशा है लाला? एक मामूली किसान की शिकायत पर मुझे इस तरह उठवाया गया। क्या मेरे बाप को खबर है कि इसकी पगड़ी के साथ क्या सलूक हो रहा है? इसके लहजे में सरदारी का वो नशा था जो इंसान को अंधा कर देता है। शमशीर लाला ने कोई जवाब ना दिया, बस अपनी गर्दन बहुत आहिस्ता से मोड़कर सामने बैठे शिकस्ता हाल गफूर को देखा। इनकी आवाज़ जब निकली तो फिज़ा में बर्फ जम गई। तुम्हारे बाप को भी खबर हो जाएगी, मगर पहले इस बाप को जवाब दो जिसकी नस्ल तुमने उजाड़ दी है। आवाज़ की गहराई इतनी हौलनाक थी कि पीपल के पत्ते भी लरसने लगे थे। लड़के ने एक हकारत भरी नज़र गफूर पर डाली और बड़ी ढिठाई से सीना तान लिया। मैं जवाब देने का आदी नहीं हूँ, और जिसे जवाब दूँ उसकी हैसियत भी कुछ होनी चाहिए। रही इसकी बेटी तो जो हुआ वो इसी के लायक थी। इश्क के जाल इसने बिछाए थे, मैंने नहीं। ओए! शमशीर लाला की आवाज़ झिरके के सकूत में इस तरह गूंजी जैसे किसी पहाड़ के भारी चट्टान फिसल कर गिरी हो। इनकी आंखों में जलाल की वो सुर्खी उतरी कि वहाँ बैठे हर शख्स का सांस हलक में अटक गया था। आवाज़ की ऊंचाई तेरी औकात का तयीन नहीं करेगी। इस ज़बान को लगाम दे, इससे पहले कि ज़बान तेरी अपनी हथेली पर रख दी जाए, इसे संभाल ले। लाला, झूठ है ये, खुदा की कसम ये झूठ है। गफूर अपनी जगह से तड़प कर उठा हुआ, हाथ कांप रहे थे और आवाज़ लरस रही थी, मगर आंखों में वो दहकती हुई आग थी जो सिर्फ एक लुटे हुए बाप के हिस्से में आती है। मेरी बेटी का दामन साफ है लाला, ये तोहमत है, सरासर तोहमत। वो तो आसमान पर उड़ते परिंदों को देखकर सर से दुपट्टा नहीं सरकने देती, वो इश्क के जाल में क्या बिछाएगी। जिरगे में सरगोशियों का एक रेला उठा था। मसलहत पसंदों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शमशीर लाला ने अपनी गर्दन बहुत आहिस्ता से मोड़ी और एक नज़र गफूर पर डाली। वो नज़र नहीं थी, एक फौलादी दीवार थी जिसने गफूर के उबलते हुए अल्फाज को वहीं हलक में रोक दिया। बैठ जाओ। शमशीर लाला का मुख्तसर हुक्म गफूर को दोबारा चारपाई पर ले गया। अब लाला की निगाहें वापस इस लड़के के चेहरे पर जम गई जिसके लहजे और नज़रों में अब तक अपने बाप की दौलत और सरदारी का कच्चा नशा तैर रहा था। सच को वकील नहीं चाहिए होता, अपना वक्त आने पर वो खुद बोलता है, और जब सब बोलता है तो फिर बड़ी से बड़ी सरदारी भी इसके कदमों में भीख मांगती नजर आती है। लाला ने अपनी लाठी पर गिरफ्त मजबूत की। इनका लहजा अब इस कदर सर्द और काटदार था कि फिजा साकत हो गई। रही बात तेरी, तो तेरी बोलने का ये अंदाज ही बता रहा है कि तरबियत किस कदर बदतमीज़ और भटकी हुई है। याद रखना, जिस घर में तरबियत का कहत हो, इसके लहजे में ऐसी ही गलाजत होती है जो तुम यहाँ उगल रहे हो। तुमने इसकी बेटी का खून नहीं किया, बल्कि अपने बाप की इस पगड़ी की धज्जियाँ उड़ाई हैं। इसे बचाने के लिए तुम यहाँ दुहाइयाँ दे रहे हो। आज तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप की हवेली की ऊंची दीवारें तुम्हें शमशीर के इंसाफ से नहीं बचा सकती, याद रखना। नौजवान ने एक बार बदहवासी में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, जैसे इस कड़े पहरे में कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, मगर जब कोई पनाह न मिली तो वहीं ख़ानदानी ढिठाई दोबारा चेहरे पर सजा ले। लाला, यह गरीब किसान और इसकी बेटी, इनकी औकात ही क्या है? आप मुझ जैसे मुअज़्ज़िज़ के ख़िलाफ़। जुमला पूरा ना हो सका शमशीर लाला की आंख का एक इशारा काफ़ी था। कारिंदे का भारी हाथ नौजवान के जबड़े पर ऐसी ज़रब लगा गया कि वो दोबारा ज़मीन बोस हो गया। शमशीर लाला अपनी जगह से उठे। इनके कदम जब पीपल के खुश्क पत्तों पर पड़े तो वो आवाज़ भी किसी हतमी फ़ैसले की दस्तक मालूम हो रही थी। औकात? वो इसके करीब आकर रुके और नीचे पड़े इस तकब्बुर को देखा जो खाक में मिलने के बावजूद अब इस अपनी बका की जंग लड़ रहा था। इंसान की औकात इसका नस्ब नहीं, इसका ज़र्फ़ होता है, और तुमने एक बेगुनाह का खून करके ये साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात इन खुश्क पत्तों से कुछ ज़्यादा नहीं जिन्हें मैं अभी अपने पैरों तले कुचल रहा हूँ। उन्होंने पलटकर गफूर को देखा। वो बूढ़ा बाप अब भी हिचकियों से कांप रहा था। शमशीर लाला की आंखों में एक ऐसा जलाल उतरा जिसका सामना करना किसी इंसान के बस में ना था। उन्होंने
पहलू से अपना पिस्तौल निकाला। मुजमा की सांस से थम गई थी। मौत जैसी खामोशी छा गई थी। कोई ना हिला, कोई ना बोला। तुम्हारा सारा गुरूर इन्हीं टांगों के बल पर है ना, जिनके जोर पर तुम गरीबों की इज्जतें और इनका मान रोनते फिरते हो। पिस्तौल का रख नीचे की तरफ हुआ। शमशीर लाला के इरादे की संगीनी अब इसकी समझ में आ चुकी थी। नहीं लाला, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। नौजवान घुटनों के बल पीछे सरकने लगा। इसकी फ़िरौनियत एक पल ही में ही खाक हो गई थी, मगर शमशीर के दरबार पे इस वक्त अब गुजर चुका था। ठा 2 गोलियां ठीक निशाने पर एक वहशियाना चीख बुलंद हुई जो फिजाओं को चीरते हुए दूर तक गई, और फिर वो नौजवान माही ब्याप की तरह तड़पता हुआ ज़मीन पर ढेर हो गया। दोनों टांगें बेकार हो चुकी थी। अभी पिस्तौल की नाली से निकलता हुआ धुआं हवा में तहलील भी ना हुआ था कि पगडंडी पर गाड़ियों का एक काफिला धूल उड़ाता आ पहुंचा। मोहम्मद बख्श बदहवासी में गाड़ी से उतरा और दीवानावार दौड़ा। जब इसके अपने इकलौते बेटे की को खून में लथपथ देखा तो उसके हलक से निकली आवाज़ दहाड़ नहीं बल्कि गुरूर के टूटने की सदा थी। ये क्या किया आपने शमशीर लाला? मेरे जीते जी मेरे बच्चे को अपाहिज कर दिया। शमशीर लाला ने निहायत सुकून से पिस्तौल होल्स्टर में डाला। इनके हाथों में लर्जिश थी, न चेहरे पर मलाल। शुक्र करो मोहम्मद बख्श कि मैंने इसे मारा नहीं, बल्कि इबरत बनाकर ज़िंदा रखा है। लाला का लहजा अब भी किसी आहनी दीवार की तरह मजबूत था, ताकि जब भी ये इस ज़मीन पर रेंगे इसे इस बाप के आंसू याद आएँ जिसकी कायनात इसने उजाड़ी है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी हवेली की जीनत था ना, अब इसे ज़मीन का बोझ बनाकर संभालो। उन्होंने एक नज़र गफूर पर डाली। वो बूढ़ा किसान अब सीधा होकर बैठ गया था। आंखें अब भी पुरनम थी, मगर चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ इंसाफ की दस्तक पर मिलता है। इससे तो बेहतर था लाला आप इसे पुलिस के हवाले कर देते। कम अज़ कम मेरा बेटा यूँ। मोहम्मद बख्श का जुमला आंसू के सैलाब में डूब गया था। इसने अपने बेटे के लहू लहान वजूद को सीने से लगा दिया। इसकी आवाज़ में वो कर्ब था जो किसी रईस को ज़ेब नहीं देता, मगर एक बाप से छीना भी नहीं जा सकता था। शमशीर लाला अपनी नशिस्त पर वहाँ वापस बैठे और मोहम्मद बख्श की आंखों में आंखें डालकर बोले, अगर मैं इसे पुलिस के हवाले करता तो तुम अपनी दौलत और असर व सुरूख के ज़ोर पर इसे चंद ही बरसों में बाहर निकलवा लेते। फिर इस बाप का क्या होता जो अपनी जवान बेटी का जनाजा घर छोड़कर मेरे पास इंसाफ की भीख मांगने आया था, तो शमशीर के जिरगे पर भरोसा करके आया था। मैं इसे खाली हाथ कैसे लौटा सकता था? उन्होंने पूरे मजमे की तरफ रुख किया। इनकी आवाज़ अब हर शख्स की ज़मीन पर दस्तक दे रही थी। यही इंसाफ था और यही बनता था। शुक्र करो तुम्हारी नस्ल बच गई, वरना इस जिरगे का कदीम असूल खून के बदले खून है। अब इसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मोहम्मद बख्श अपने बेटे के बिखरे हुए वजूद को समेटने लगा। तभी शमशीर लाला की आवाज़ एक बार फिर उठी। इस बार में इस पर पहले से ज़्यादा गरज और तंबी थी। और सुन लो सब, आज के बाद अगर किसी ने गफूर के घर की तरफ मैली नज़र से देखा या इसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इसका जवाब वो यहाँ बैठा हर शख्स होगा। फिर आगे जो होगा वो बताने की ज़रूरत नहीं। लाला ने अपनी लाठी उठाई और सर्द लहजे में गरजे। जिरगा ख़त्म हुआ। वो बगैर मुड़े वहाँ से चल दिए। पीछे मोहम्मद बख्श की चीखें दी और पीपल के पत्तों में सरसराती वो हवा जो अब इंसाफ की वो खुशबू से मुअत्तर हो चुकी थी। बारिश थम चुकी थी, मगर बादलों के हटते ही निकली तीखी धूप ने फिजा में एक अजीब सा हब्स कर दिया था। होटल के इस पुरतइश कमरे में बड़ी शीशे की खिड़कियों के पास शहर दूर तक फैला हुआ था, जो इस हब्स से बेखबर धूप में नहाया हुआ था। एसी की धीमी साएं कमरे की खामोशी में इस तरह घुली हुई थी जैसे इन दोनों के दरमियान किसी दीवार की तरह खड़ी हूँ। अदनान सोफे पर बैठा था, एक आईब्रो सी उठी हुई। इसकी नज़रें शायान पर टिकी थी। शायान अभी परीक्षे से फ़ोन पर बात करके हटा था और अदनान की वो साकत नज़र इसके असाब पर हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। क्या ज़ुबान पर ताले पड़ गए हैं? शायान ने ज़िद होकर कहा और हाथ में पकड़ा फ़ोन बेड पर पटक दिया। सब्र रखो, बता देता हूँ। इस तरह आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अदनान के लबों पर एक मानिया ख़ेज़ मुस्कुराहट आई और ठहर गई। जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी ज़बान से ही सुनना चाहता हूँ कि मोहतरमा ने क्या नौईद सुनाई है या फिर अपनी तरफ से कोई नया बहाना घड़ा है। शायान ने नफ़ी में सर को हिलाया। कह रही है कि मिलवा देगी। वैसे तुम्हारा यहाँ तक मेरे लिए आना फजूल है। अस्पताल में मैं मरीज़ होंगे, वहाँ होना चाहिए था तुम्हें। अदनान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने सोफे की पुट से टेक लगाई और नज़रें शायान के चेहरे में जमा दी जैसे वहाँ कुछ लिखा हो जो पढ़ना ज़रूरी हो। शायान की आवाज़ में बेचैनी और थकन घुली हुई थी। वो इसकी जानिब पलटा और इसके चेहरे पर नज़रें गाड़ दी। मैं पहले ही से परेशान हूँ। ये चुप तोड़ो और बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, दरवाजे पर दस्तक हुई। शायान ने एक लम्हे के लिए आंखें मूंदी, फिर उठा और दरवाज़ा खोला। वेटर ट्रॉली लिए खड़ा था, वही ऑर्डर जो इसने अदनान के आते ही दे दिया था। अदनान को पहुँचे अभी थोड़ी ही देर हुई थी, मगर इस मुख्तसर वक्त में भी कमरे की फ़िज़ा काफ़ी बोझिल हो चुकी थी। थैंक यू, शान ने मुख्तसरन कहा। ट्रॉली अंदर खींची और दरवाज़ा बंद कर दिया। अदनान ने ट्रॉली की तरफ एक सरसरी सी निगाह डाली। ये तकल्लुफ़ भी रहने देते। जिस तरह तुमने कह दिया कि मेरा यहाँ आना फजूल था, तो ये खातिर तवासो भी इतनी ही फजूल है। मुंह बंद रखो, शान ने ट्रॉली को कमरे के बीच खींचते हुए कहा। लहजे में झंझलाहट थी, मगर इसके पीछे वो बेचैनी भी थी जो वो छुपाना चाहता था। मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम्हारा यहाँ आना फजूल था। अपने काम पर तवज्जो दो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अदनान ने इसे देखा और फिर आहिस्ता से हंसा। वो हंसी जो पुराने दोस्त तब हंसते हैं जब इन्हें पता हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। अदनान ने कांटा उठाया और बगैर किसी तकल्लुफ़ के खाने में लग गया। घंटों की उड़ान के बाद ये पहला ढंग का खाना था और भूख इतनी शदीद थी कि वो शायान की बातों को एक तरफ रखकर बस खाता रहा। शान ने एक नज़र इसे देखा, फिर खामोशी से पानी का गिलास इसकी तरफ सरका दिया। खाने के दौरान काफ़ी खामोशी छा गई थी। अब कुछ बोलोगे या चुप का रोज़ा रख लिया है? शान इसकी मुसलसल खामोशी से ज़िद होकर बोला। लहजे में बेजारी साफ थी। अदनान ने प्लेट में गांठा रखा और नज़रें उठाकर शायान को देखा। क्या बोलूं? अगर ज़ुबान खोलूँगा तो यही पूछूंगा कि वो मोहतरमा तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलाने में इतनी देर क्यों कर रही है। इसने टिशू हाथ से साफ की और बात जारी रखी। सच पूछूं तो मुझे ये सब अभी भी एक ड्रामा लगता है। वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी और ये बेटी वाली कहानी ये मुझे हज़म नहीं होती। वो एक पल को रुका, फिर लहजे में थोड़ी नरमी घोल ली। यार, मैं तुम्हारी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो लड़की अच्छी है, सुलझी हुई है, बिजनेस माइंड है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो और वो तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ता देखकर मुझे सच्ची खुशी होगी। मगर यार, ये जो इसने बेटी वाला मोहरा चला दिया है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। इसने टिशू मेज़ पर रखा, कुर्सी से उठा और पास रखे सोफ़े पर ज़रा फैल कर बैठ गया। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर है कि तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लड़ा रहे। जो चीज़ मुमकिन नहीं, इसके पीछे यूँ पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो? शायान ने ट्रॉली एक तरफ खिसकाई और अदनान के पास आ बैठा। कुछ देर कमरे में बोझल खामोशी छाई रही और रूप को खोने के बाद वो रुका, जैसे लफ्ज़ हलक में आकर फंस गए हों। मैंने हर लम्हा खुद को घसीट कर गुजारा है, तुम जानते हो अदनान। अदनान खामोश रहा। वो जानता था कि ये वो ज़ख्म है जिसकी टीसें अब कभी ख़त्म नहीं होती। शायान खान ने मोहब्बत सिर्फ एक बार की थी और इसे अपने ही हाथों खो दिया। इसने अपना हाथ उठाकर आंखों पर रख लिया। अदनान की नज़रें इसके चेहरे पर जम गई, इस दबे हुए दर्द पर जो शायान बरसों से पीता आ रहा था। मगर आज अगर अरूब ने मेरी कोई निशानी, मेरी कोई औलाद जिंदा है। कमरा एक बार फिर से खामोशी की जद में आ गया। बस एक बार इस तक पहुंचना चाहता हूं। क्यों, कब और कैसे, ये सब सवाल बात के हैं। अदनान ने एक लंबी सांस ली, अपनी उंगलियां आपस में उलझाई और दीवार को घूरने लगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। वो थोड़ी देर ठहरा। मगर यार, कई बरस लगते हैं तुझे खुद को समेट कर यहाँ तक लाने में। मेरी नीयत को समझ, मैं तुझे एक बार फिर टूटते हुए नहीं देख सकता। शायद ने एक लम्हे के लिए अदनान के चेहरे को देखा, फिर नज़रें कहीं दूर भटक गई। तेरी नीयत पर मुझे आंखें बंद करके यकीन है, भला तुझ पर शक कैसे कर सकता हूँ। वो रुका, जैसे अगले लफ्ज़ इसके अंदर से आ रहे हों। अगर तू ना होता यार, तो शायान खान आज मिट्टी का ढेर बन चुका होता। शायान की मुट्ठी आहिस्ता आहिस्ता से बंद हुई और फिर खुल गई। बस एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ अदनान, शायद सब कुछ बदल जाए। अदनान की नज़रें शायान के चेहरे पर ठहरी थी। बरसों का साथ था, बरसों की पहचान। वो जानता था कि जब शायान के लबों पर हंसी का चिराग चलता है, तब भी इसकी आंखों में वीरानियों के डेरे होते हैं। अरूब इसके वजूद की तहों में आज भी किसी ऐसे ज़ख्म की तरह ताज़ा थी जो बज़ाहिर भर तो जाता है, मगर अपनी मौजूदगी का निशान कभी नहीं मिटने देता। इसने आहिस्ता से शायान के कंधे पर हाथ रखा, जैसे बिखरते हुए वजूद को सहारा दे रहा हो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब ठीक करेगा। एक लम्हे की खामोशी ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। फिर अदनान का लहजा पहले से भी ज़्यादा धीमा और गहरा हो गया। मगर शायान, एक बात कान खोलकर सुन ले। जिस शराब के ताक़ुब में तुम जा रहे हो, ख़ुद को इसके हर अंजाम के लिए तैयार रखना। शराब अक्सर छोटे होते हैं और वहाँ से वापस ही निकलता है जिसके कदमों तले अपनी हकीकत की ज़मीन मजबूत हो। शायान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस साकत बैठा रहा। अदनान का हाथ अब भी इसके कंधे पर एक बोझल तसल्ली की तरह धरा था। मुझसे वादा कर, अगर खुदा न खास्ता ये बात गलत निकली तो खुद को संभालेगा।
टूटेगा नहीं और मेरे साथ खामोशी से वापस लौट जाएगा। शान ने नसें उठाई और एक लम्हे के लिए अदनान के फिक्रमंद चेहरे को देखा। इसकी आंखों में बरसों की थकन सिमट आई थी। वादा करता हूँ कि संभल जाऊँगा। वो रुका जैसे अल्फाज के इंतखाब में दिक्कत हो रही हो, मगर ये नहीं कह सकता था कि टूटूंगा नहीं। इंसान हूँ यार, और इंसान जब उम्मीद के सहारे जी रहा हो तो इसके छिन जाने पर तकलीफ़ तो होती है। अदनान कुछ न बोला, बस एक खामोश सामिया बनकर इसके अंदर का कर्ब सुनता रहा। हाँ, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो मेरा वादा है मैं संभल जाऊँगा, तेरे साथ वापस चलूँगा। शयान के होठों पर एक मध्यम और बेजान सी हंसी आई, मगर आंखें बदस्तूर उदास रहीं। इस ज़मीन पर मेरे लायक न पहले कुछ था न अब है, बस एक अरूप थी जो अब रही नहीं, और अब ये एक मोहम सी उम्मीद है जिसने मुझे अभी तक थाम रखा है। अदनान की आंखें भर आईं। इसे अब मज़ीद कोई सवाल नहीं करना था, क्योंकि इसे वो जवाब मिल चुका था जो लफ्ज़ों के दरमियान कहीं छुपा हुआ था। कमरे में छाई वो बोझल खामोशी अब शयान के इस एतराफ़ की गवाह बन चुकी थी, जिसके बाद कहने को कुछ बाकी न रहा था। आईसीयू का भारी भरकम दरवाज़ा एक सनसनाहट के साथ खुला था। बस इतना सा अमल था, मगर यूं लगा जैसे कायनात ने एक लम्हे को अपनी सांस रोक ली हो। बाहर राहदारी में खड़े हर वजूद के लिए गहरी घड़ी की सुइयां मुजम्मद हो चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी सिर्फ 10 मिनट का किस्सा सुना रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर दिल ने इन लम्हों को सदियों की मसाफत की तरह झेला था। हर सेकंड एक बोझ था और हर गुजरता पल अज़ियत की एक नई तह। डॉक्टर बाहर निकला। तमाम निगाहें बैक वक्त इसके सपाट चेहरे पर जम गई। एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख रहा था, किसी का बदन हिलाना, लबों से कोई सदा निकले। सांसें जैसे हलक के किसी बंद कुएं में आकर ठहर गई थी। डॉक्टर ने सब पर एक तायराना नज़र डाली और फिर एक गहरा सांस लेते हुए इस वहशत ज़दा खामोशी को तोड़ा। मुबारक हो, मरीज़ा ख़तरे से बाहर है। ये सुनना था कि महसूस हुआ कि जैसे किसी ने सीनों पर रखी सीलन हटा दी हो, मगर डॉक्टर के चेहरे पर इत्मीनान का दूर दूर तक पता न था। इसका लहजा पेशावराना हद तक संजीदा और किसी संगे मेल की तरह दो टोक था। देखें, मैं वाकई मायूस हुआ हूँ। एक पढ़े लिखे घराने में ऐसी गफलत की तवक्को नहीं की जा सकती। आप लोगों ने इस केस को खुद उलझाया है। शदीद ज़हनी दबाव की वजह से इनका ब्लड प्रेशर इस हद तक गिर गया था कि अगर चंद मिनट की भी ताख़ीर हो जाती तो शायद हम इन्हें संभाल ना पाते। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो अधूरा जुमला किसी भी मुकम्मल वजाहत से ज़्यादा भारी, भयानक और खौफनाक था। हालत अब भी तशवीशनाक है। फ़िलहाल सबसे ज़रूरी इनके ब्लड प्रेशर को मुस्तहकम रखना है। याद रखिए, इन्हें किसी भी किस्म के जज्बाती सदमे या तनाव से बचाना अब किसी भी महंगी दवा से ज़्यादा अहम है। सॉरी डॉक्टर, आइंदा हम पूरा ख्याल रखेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तबरेज़ खान ने आगे बढ़कर बहुत ठहरे हुए लहजे में डॉक्टर को यकीन दहानी करवाई कि इनके चेहरे की मसलहत आमेज़ संजीदगी इनके अंदरूनी कर्ब को बड़ी महारत से छुपा रही थी। क्या हम इनसे मिल सकते हैं? तबरेज़ खान ने फिक्रमंदी से पूछा। अभी नहीं, कुछ देर इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर ने दो टोक जवाब दिया और आगे बढ़ने लगा, मगर फिर अचानक रुक कर मुड़ा और कॉरिडोर के सन्नाटे में अपनी आखिरी हिदायत छोड़ी। और प्लीज़ मरीज़ के पास रश नहीं लगाना। एक वक्त में सिर्फ एक शख्स इनके करीब रहेगा, इससे ज़्यादा लोग मिलने की कोशिश ना करें। हम इनकी कंडीशन के साथ मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर ये कहकर तेज़ी से चलता हुआ ओझल हो गया, मगर तबरेज़ खान वहीं मुजम्मद रह गए। डॉक्टर की आखिरी बात ने इन्हें एक नई फ़िक्र पर सूली पर लटका दिया था। अब ये फ़ैसला इन्हें खुद करना था कि वो एक शख्स कौन होगा जो अबीरा की ज़िंदगी और मौत के दरमियान पहरा देगा। आर्यान ने हज़ियानी अंदाज में उंगलियां बालों में पैबस्त की और एक झटके से इन्हें पीछे की तरफ खींच लिया। इसकी भिजी हुई मुट्ठियों में दबी पूरे इस हद तक सफ़ेद पड़ चुकी थी जैसे अभी खाल फट पड़ेगी। इसकी नज़रें तबरेज़ खान के साकत चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं, मगर इन आँखों के पीछे किसी वीरान कब्रिस्तान जैसा मातम बरपा था। इसे सामने खड़े शख्स की खामोशी में साफ लिखा नज़र आ रहा था कि वह एक शख्स जिसका डॉक्टर ने जिक्र किया है कायनात का कोई भी दूसरा इंसान हो सकता है, मगर आर्यान नहीं। तबरेज़ खान इसे अबीरा के साए को छूने की इजाज़त भी कभी नहीं देंगे। इसकी रगों में दौड़ता लहू किसी खोलते हुए लावे की तरह दीवार से टकरा रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि अगर वो एक लम्हा भी मज़ीद वहाँ खड़ा हुआ तो इसके अंदर बर्पा होने वाला धमाका राहदारी की इन दीवारों को मलबे के ढेर में बदलेगा। इसने आज अपनी अना का जनाजा निकाल कर एक ऐसी कीमत चुकाई थी जिसके सिले में इसे अबीरा के करीब होना था, मगर बदले में इसे दूरियों के तपते हुए सहरा में ला फेंका था। वो दफ्तर मुड़ा, इसके जूतों की भारी ज़रफ़
कॉरिडोर की बोझल सन्नाटे को बेदर्दी से चीरने लगी। वो कदम नहीं थे, किसी बिफरे हुए जख्मी शेर की दहाड़ थी जो ज़मीन पर नक्श हो रही थी। इसके जिस्म से फूटता जलाल हवा के रुख बदल रहा था, जो साफ बता रहा था कि इसे पीछे धकेल देना तबरेज़ खान की जीत तो हो सकती है, मगर इसके जुनून को मात देना किसी इंसान के बस का रोग नहीं। परीक्षा के बाबा ने ऑफिस से घर तक का सफ़र किन कर्बनाक लम्हों में तय किया था, ये सिर्फ इनका दिल ही जानता था। इनका सारा गुस्सा ड्राइवर पर निकल रहा था, जिसे वो बार बार गाड़ी मज़ीद तेज़ चलाने की हिदायत दे रहे थे। ऑफिस में जो खबर इनकी बीवी ने फ़ोन पर सुनाई थी वो किसी क़यामत से कम न थी। गाड़ी के टायरों के चिंगार के साथ पोर्च में रुकी वो तेज़ कदमों से घर के अंदर दाखिल हुए, जहाँ परीक्षा की मान की राह तक रही थी। बेचैन नज़रें और परेशानी से बोझल चेहरा इनके अंदरूनी कैफियत का पता दे रहा था। कहाँ है वो? उन्होंने सुर्ख आंखों से अपनी बीवी को घूरते हुए पूछा। इनके लहजे की तपिश बता रही थी कि वो इस वक्त किसी आतिश फिशां की तरह बने हुए हैं। कहाँ होंगी? अपने कमरे में है और इसे ज़रा बराबर भी पछतावा नहीं है। बीवी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। कहती है कि ये निकाह करके इसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है, उल्टा मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। इसी मनहूस दिन से डरता था मैं चाहता था कि इसे जल्द अज जल्द यहाँ से रुखसत कर दूँ, मगर परीक्षा के बाबा बोलते बोलते इस तेज़ी से इसके कमरे की जानिब बढ़े। इनका हर लफ्ज़ गुस्से और पछतावे की आग में झुलसा हुआ था। कमरे के सामने पहुंचकर उन्होंने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलूं परीक्षा। इनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। एक लम्हे को बोझल ताख़ीर के बाद दरवाज़ा खुला। वो सामने ही खड़ी थी, साकत और खामोश। मगर ये क्या? इसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही नदामत की कोई परछाई। वो बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ अपने बाप के सामने खड़ी थी, जैसे इससे पहले से ही इस तूफ़ान का अंदाज़ा था। तबरेज़ खान का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। इनका ख्याल था कि वो रोती हुई मिलेगी, कदमों में गिरकर माफ़ी मांगेगी या कम अज़ कम खौफ से कांप रही होगी, मगर वो तो पत्थर का बूत बनी खड़ी थी। उन्होंने एक कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। परीक्षा ने ज़रा ना हिली, बल्कि साकत खड़ी इन्हें देखती रही। इसकी आंखों में पशेमानी का एक कतरा तक ना था। क्या सुना है मैंने? क्या सच है ये सब? परीक्षा के बाबा के हलक से निकली आवाज़ किसी ज़ख्मी दरिंदे की मानिंद थी। इनके माथे की रगें तन गई थी और चेहरा गुस्से से तप रहा था। परीक्षा ने कुछ ना कहा। इसने सिर्फ एक गहरा सांस लिया और अपनी नज़रें बाप के चेहरे पर जमा दी। इसकी ये खामोशी उसके बाबा के सब्र का पैमाना लबरेज करने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी बीवी को देखा, जो दहलीज पर खड़ी आंसू बहा रही थी। फिर दोबारा परीक्षा की सिमत पलटे। इनका हाथ लरस रहा था, शायद गुस्से से या फिर इनकी कही सच्चाई के बोझ से। परीक्षा, अपनी ज़ुबान खोलो इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। क्या वाकई तुमने हमारी इज्जत का सौदा किया है? इसने अब भी कोई जवाब न दिया। छोटे छोटे कदमों से अपने कमरे की खिड़की की तरफ मुड़ गई, जैसे वह सामने खड़े तूफ़ान से ज़्यादा बाहर के मनाजर में दिलचस्पी रखती हूँ। इसकी इस लापरवाही ने इसके बाबा के अंदर लगी आग को जैसे पेट्रोल दे दिया था, इससे पहले कि वो गुस्से से फट पड़ते। परीक्षा की आवाज़ ने इसे रोक दिया। जी बाबा, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सच है। परीक्षा की आवाज़ में ज़रा बराबर भी लर्जिश नहीं थी। इसने नज़रें झुकाए बगैर अपनी बात जारी रखी। और अगर आप इस जुर्म के बदले में मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, मगर मैं अब भी यही कहूँगी कि मुझे कुछ गलत नहीं किया। इसके बाबा के चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियाँ गहरी हो गईं। परीक्षा ने एक ठंडी सांस ली और पलटकर इनके करीब आकर खड़ी हो गई। आज की दुनिया में बिजनेस में इतना बड़ा मकाम बनाने के बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला इन फरसूदा रिवायतों की भेंट नहीं चढ़ा सकती। आपने जब मेरा रिश्ता आर्यान से तय किया तब मुझे समझ नहीं थी। आपने मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो आपकी पसंद थी, मेरी नहीं। वो आपकी गलती थी बाबा, और मैं आपकी इस एक गलती की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। परीक्षा, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही? तुम ये सब अपने बाप के मुंह पर कह रही हो? दहलीज पर खड़ी इसकी माँ ने तड़प कर इसे टोका। नहीं, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। इसने रुख मोड़कर अपनी माँ को देखा। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ये निकाह आपकी पसंद और रजामंदी से भी कर सकती थी, मगर मैं जानती थी मैं आप कभी नहीं मानेंगी। आप मुझे जीते जी इस आग में झोंक देते। इसने थोड़ी देर दम लिया, जैसे अपने अंदर का सारा जहर लफ्ज़ों में समो रही हो। जिस शख्स से मैं हद से ज़्यादा अकड़ हूँ, जो खुद को आसमानी मखलूक और मुझे अपने पाँव की जूती समझता हो, मैं इसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? और क्यों गुजारूँ मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी? परीक्षा के बाबा के सीने में जैसे किसी ने वज़नी पत्थर रख दिया हो। वो निढाल से होकर पास पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गए, मगर नज़रें अब भी परीक्षा के चेहरे पर जमी थी। आप ठीक तो हैं?
परीक्षा की माँ ने घबरा कर कदम आगे बढ़ाया, मगर एक लरसते हुए हाथ के इशारे ने इन्हें वहीं साख़त कर दिया। मैं ठीक हूँ। इनकी आवाज़ में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दगी थी। इनकी नज़रें अपनी बेटी के सपाट चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। नहीं परीक्षा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालांकि ये मेरा हक है, तुम मेरा खून करो, तुम मेरा खून हो, मगर अब मारपीट का तुम पर कोई असर नहीं होगा। तुम इन सब हदों से बहुत आगे निकल चुकी हो। एक तवील और तकलीफ ज़दा सांस कमरे के सन्नाटे में गूंजी। इसके चेहरे पर कर्व की लहरें वासे थीं, मगर अल्फाज में एक संगीन फैसला था। अब तुम्हारे और हमारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके साथ तुमने ये रिश्ता जोड़ा है, इसी के पास चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो सकता है इस अंजाम से तुम अनजान नहीं। आंखों में नमी तैरने लगी, मगर लहजा पत्थर जैसा सख्त रहा। मैं ये जहर का घूंट पी लूँगा, समाने से कह दूँगा कि हमारी बेटी हमारे इख्तियार में नहीं रही, लेकिन ये बात सहन नशीन कर लो परीक्षा। इस मुल्क और इस माशरे में रहते हुए वो लोग तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इन तीखे अल्फाज के पीछे एक तड़प थी। वो अपनी बाकी बेटी को नफरत से नहीं बल्कि मौत के खौफ से दूर भेजना चाहते थे और इसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे, मगर एक बाप के वक़ार के साथ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। परीक्षा बेख्तियार आगे बढ़ी, मगर इनके उठे हुए हाथ ने इसे वहीं मुजम्मद कर दिया। वो हाथ जो भी कभी प्यार से इसके सर पर थपकी दिया करते थे, आज एक दीवार की तरह हायल थे। ज़रूरत नहीं है इस थैंक यू की। बाप हूँ, इसलिए तुम्हारे हक़ में कोई कड़वा फ़ैसला करना मेरे बस में नहीं, वरना जो तुमने किया है इसकी सज़ा तो बहुत कठिन होनी चाहिए थी। इनका लहजा किसी बोझल थकन में डूबा हुआ था। मजबूर हूँ, चाहकर भी तुम्हें वो सज़ा नहीं दे सकता। तुम्हारे सिवा हमारे पास है ही क्या? वो कपकपाते हुए लहजे से बोल रहे थे। तो बाबा, जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो माफ़ कर देना, कम अज़ कम आप तो यूँ मुँह ना मोड़े। अभी चंद लम्हे पहले जो लड़की बगावत के निशान पर खड़ी थी, बाप की नरमी देखकर इसकी आंखों की बाढ़ टूट गई और आंसू किसी लड़ी की टूटे मोतियों की तरह गालों पर गिरने लगे। कर दूंगा माफ़, मगर अभी नहीं। बेहतर है कि तुम यहाँ से रुखसत हो जाओ। इनके लहजे में अब गुस्से से ज़्यादा एक अनकही बेबसी थी। सॉरी बाबा, मैं अभी नहीं जा सकती। एक वादा है जिसे निभाना है, इसके बाद चली जाऊंगी। आप बेफिक्र रहें, जिसके साथ मैंने रिश्ता जोड़ा है वो इस काबिल है कि आपकी बेटी का दिफा कर सके। इसके लहजे में मौजूद वो पुख्ता यकीन इसके बाप के लिए अजनबी था। परीक्षा के बाबा ने एक तवील सांस फिजा के सुपुर्द की। ठीक है, जल्द से जल्द जाने की तैयारी करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी माँ से कह देना। जब तक सांस है, जो मेरे बस में हुआ ज़रूर करूँगा, मगर फ़िलहाल मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। वो नम आँखों के साथ मुड़े ही थे कि परीक्षा ने 2-3 तेज़ कदमों से फासला तय किया और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती। वो ऐसे रो रही थी जैसे बरसों का दुख आंखों के रास्ते बह निकलना चाहता हो। सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। मैं क्या करती, मुझे आर्यान पसंद नहीं था। मैं इसके साथ ज़िंदगी की गाड़ी नहीं खींच सकती थी। पता है, मैंने आपका दिल दुखाया, मगर बाबा, इसकी और मेरी सोच के ज़ाविये बहुत अलग थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आपका दिल जो पहले ही बर्फ़ की तरह पिघल चुका है, इसे खामोशी से माफ़ कर चुका था। वो खूबी जानते थे कि इनकी बेटी शुरू से ही यही कहती आई थी कि इसका और आर्यान का कोई जोड़ नहीं। वो आर्यान के मिजाज की तपिश और अपनी बेटी की आज़ाद फितरत दोनों से वाकिफ़ थे। वो दो ऐसी तलवारें थीं जो एक न्याम में कभी नहीं समा सकती थी। कुछ देर तो वो बाजू लटकाए साकत खड़े रहे, फिर बाप की फितरी मोहब्बत गालिब आ गई। उन्होंने बेटी को बाहों के हिसार में लिया और उसके माथे पर महर वफा की तरह एक बोसा सब किया। परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फ़िलहाल तुम्हारा यहाँ से ओझल होना ही बेहतर है। जब हालात की धूल बैठ जाए तो लौट आना। मैं यहाँ सब संभालने की कोशिश करूँगा। बाप का इतना कह देना ही बेटी के लिए कायनात पा लेने के मुतरादिफ था। परीक्षा की माँ साकत खड़ी ये सब देख रही थी। इसे लगा था कि आज इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी, मगर यहाँ तो तूफ़ान खामोशी से गुजर गया था। वो कुछ ना बोली, आखिर वो भी तो माँ थी। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहती थी, मगर इसके दिल में दुनिया का खौफ अब भी किसी खार की तरह छुप रहा था। रिवायात के असीर लोग अक्सर अपनों की खुशी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जब कमरा खाली हुआ तो परीक्षा के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट लहराई। वो दिल में रब का शुक्र अदा कर रही थी। वो हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। ये सब कुछ इसकी तवक्कुआत के बरअक्स एक मौजज़े की तरह हुआ था। आर्यान अस्पताल की इमारत से बाहर निकला तो शाम की खनकी भी इसके अंदर लगी आग को ठंडा करने में नाकाम रही। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ अस्पताल के मरकज़ी गेट के करीब वाक़े एक जदीद और महंगी कॉफ़ी एंड सिगार शॉप की तरफ बढ़ा था।
اس نے سگریٹ کی ڈبیا خریدی اور پارکنگ ایریا کے ایک سنسان کونے کی طرف مڑ گیا۔ مٹھیاں اب بھی اس قدر بھینچی ہوئی تھیں کہ پوروں کے گرد خون مجمد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لائٹر جلایا۔ پہلا گش لیتے ہی کڑوا دھواں اس کے پھیپھڑوں میں اترا تو ایک تلخ سی راحت کا احساس ہوا۔ جب سے اسے عبیرہ سے محبت ہوئی تھی اس نے اس زہر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر آج ضبط کا بندھن اس بری طرح ٹوٹا تھا کہ اسے اپنے وجود کو بکھرنے سے بچانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک کش لگا رہا تھا۔ سگریٹ کے سرے پر دہکتی ہوئی آگ جیسے اس کے اپنے اندر لگی آگ کا عکس تھی۔ دھواں فضا میں بوجھل لکیر بنا رہا تھا اور وہ اپنی بے چین نظروں سے ہسپتال کی اونچی عمارت کو گھور رہا تھا، جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑا دکھ قید تھا۔ ابھی اس نے تیسرا سگریٹ سلگایا ہی تھا کہ پارکنگ میں داخل ہوتے ایک مرسیڈیز کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس میں سے سارم برآمد ہوا۔ سارم نے پریشانی کے عالم میں ہسپتال کی عمارت کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کی نظر سگریٹ کے دھوئیں کے خالے میں گھر کے گھرے آریان پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر اپنے دوست کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ پھیپھڑوں کے تباہ ہونے سے وہ ہوش میں نہیں آئے گی۔ آریان، موت کی دہلیز پر کھڑی عورتیں دھوئیں کے مرغولوں سے نہیں مقدر کی مہربانی سے جیا کرتی ہیں۔ سارم اس کی کاٹ دار آواز پر آریان کی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت رقص کر رہی تھی۔ تو ہونے دو تباہ، راکھ ہو جانے دو اس وجود کو۔ ایسی زندگی کا اچار ڈالوں گا میں جس میں وہ نہیں ہے۔ اس نے ایک اور گہرا کش لیا، جیسے اپنے اندر کی تپش کو اس کڑوے دھوئیں سے دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ سارم نے ایک تنزیہ نظر آریان کے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ پر ڈالی۔ تمہارے یہ سستے اور بازاری ڈرامے حقیقت نہیں بدل پائیں گے۔ یہ خودکشی کے ارادے بزدلوں کو بہادری لگتے ہوں گے، مگر میری نظر میں تو صرف ایک تماشا ہے جو تم اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے تماشا ہوگا سارم۔ آریان کا لہجہ درد سے بوجھل تھا۔ میرا پور پور کٹ رہا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ روح پر زخم لگ جائیں تو درد کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ خبر ہے مجھے، مگر یہ جو تم خدا کی امانت کو اپنی جاگیر سمجھ کر مٹانے کی بددعائیں دے رہے ہو، یہ عشق نہیں، خالص گھٹیا پن ہے۔ سارم کے لہجے میں وہ اب روح تھا جو سامنے والے کو لاجواب کرتے۔ میں اس وقت تمہاری تقریر سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، سمجھے تم؟ آریان نے تیکھے لہجے میں سے ٹوکا۔ ہاں الحمدللہ، تم جیسے جنونیوں کے پاس سچ سننے کا حوصلہ کبھی نہیں رہا، مگر خدا کا واسطہ ہے اپنی جان پر نہیں تو اپنے مردانہ وقار پر اس رحم کر لو جسے تم نے اس سگریٹ کے دھوئیں میں اڑانا شروع کر دیا ہے۔ سارم اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کا لہجہ تپتے ہوئے لوہی جیسا تھا۔ وہ گھر میں عزل کا برپا کیا ہوا ماتم جھیل کر آیا تھا، اور یہاں اسے آریان کا یہ نیا تماشا مل گیا۔ یہ ہمدردی جا کر اس کے باپ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ میرا نکاح ہوا ہے اس سے، میرا نام جڑا ہے اس کے ساتھ، کیوں نہیں ملنے دے رہا وہ مجھے اپنی بیوی سے؟ اس لیے کہ وہ ایک باپ ہے آریان، اور ایک غیرت مند باپ کی نظر میں تم ایک اغوا کار ہو، شوہر نہیں۔ کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی زبردستی اس کی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے دور لے جائے۔ عبیرہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے تو تبریز خان وہی کر رہے ہیں جو ایک زخمی انا والے باپ کو کرنا چاہیے۔ تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا اسے دعاؤں سے رخصت کرتے؟ سارم اپنی مرسیڈیز سے ٹیک لگائے ٹانگیں کراس کیے کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے رکھے تھے اور بڑی بے رحمی سے آریان کو اس کی اوقات کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ دوسری طرف آریان تھا جو مسلسل کش پہ کش لگائے جا رہا تھا۔ غصے اور کرب سے اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی مٹیالے سفید رنگت اب تپش سے تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ گھنی داڑھی اور تراشی ہوئی مونچھوں کے درمیان اس کا چہرہ اس وقت لاوے کا منظر پیش کر رہا تھا جو بس پھٹنے کے قریب ہو۔ ہا ہا ہا، آریان ایک وحشیانہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس کے جنون کے عالم میں اپنا سر جھکا اور سگریٹ کا ایک لمبا کش بھر کر سارا دھواں سارم کے چہرے کے سمت اچھال دیا۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، اصل بات تو میں ہی بھول گیا تھا۔ سارم، تمہیں میری بات صحیح لگے گی بھی کیوں؟ آخر وہ تمہارا بھی تو باپ ہے۔ اس نے سگریٹ والے ہاتھ سے سارم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں کی تصدیق اور جنون کا ایک عجیب آمیزہ تھا۔ خون تو ایک ہی ہے نا، تو تم اپنے باپ کی سائیڈ ہی لوگے۔ میری سائیڈ کیوں لوگے تم؟
اس کی غیرت کے قصیدے پڑھو گے میرے نکاح کے نہیں، تمہاری نظر میں بھی تو میں وہی مجرم ہوں جو عبیرہ کے باپ کی نظر میں ہوں۔ آریان نے ایک بار پھر وہی تلخ ہنسی دہرائی جیسے وہ سارم کے وقار کی دھجیاں اڑا رہا ہو۔ اس کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ زہریلا ہو چکا تھا۔ افسوس ہے مجھے تم پر اور تمہاری اس بیمار سوچ پر آریان۔ سارم نے مرسڈیز سے اپنی ٹیک ہٹائی اور ایک قدم آگے بڑھ کر آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے لہجے میں اب وہ سرد مہری تھی جو خون جمع تھے۔ سارا بچپن ساتھ گزارا ہے ہم نے، مگر آج احساس ہوا کہ تم نے مجھے کبھی جانا ہی نہیں۔ کیا تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو کہ میں کسی رشتے کی خاطر حق اور انصاف کے ترازو میں ڈنڈی ماروں گا؟ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آریان کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ ذرا سی حقیقت کا آئینہ کیا دکھا دیا؟ تم نے تو فوراً سے مجھ پر ہی انگلی اٹھا دی۔ جس شخص نے تمہارے ہر جرم پر پردہ ڈالا آج وہ صرف اس لیے غیر ہو گیا کیونکہ وہ تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھا رہا ہے۔ سارم کے لہجے کی گونج پارکنگ کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ یاد رکھنا آریان، رشتہ میرا اس شخص سے ضرور ہے، مگر میں یہاں اس کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، تمہارے اس دوست کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو تمہیں اس کھائی میں گرنے سے بچانا چاہتا ہے، جس کا دوسرا نام بربادی ہے۔ مگر تم تو اس وقت غصے سے اندھے ہو چکے ہو، تمہیں اپنی انا کے سوا کچھ سمجھائی نہیں دے رہا۔ ہاں، مجھے اپنی انا کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور کیوں آئے گا؟ آریان نے سگریٹ کا آخری ٹکڑا زمین پر پھینک کر اسے اپنی مہنگے بوٹ تلے بے رحمی سے مسل دیا۔ اس کی آواز اب کسی بکھرے ہوئے سمندر کی طرح گرج رہی تھی۔ انا ہوتی تو میں تمہارے باپ کے سامنے اس طرح فرش پر نہ بچھا ہوتا۔ میں جھک گیا سارم، میں اس شخص کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے، ہر وہ منت کی جو آریان خان کو زیب نہیں دیتی۔ اس سے زیادہ کی امید مجھ میں مت رکھنا کیونکہ تم میری فطرت سے واقف ہو۔ اس نے ایک قدم سارم کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں اب کسی جلاد کی طرح بے رحم ہو رہی تھیں۔ میں عبیرہ کی محبت میں جس قدر خود کو بدل سکتا تھا میں نے بدل لیا، اسے زیادہ میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے باپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ مجھ سے عبیرہ کو چھین لے گا تو وہ غلطی پر ہے۔ آریان کے لبوں پر ایک زہریلی اور شفاف مسکراہٹ لہرائی۔ انہیں یاد دلا دینا کہ جیسے پہلے اسے ہزاروں میل دور لے گیا تھا اب بھی وہی کروں گا۔ زمین کے کسی کونے میں بھی چھپا دیں اسے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ عبیرہ میری ہے سارم، اور آریان اپنی ملکیت کسی کے لیے نہیں چھوڑتا، چاہے وہ تمہارا اور عبیرہ کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ سارم کی آنکھوں میں حیرانی کا ایک سمندر ساکت ہو گیا تھا، لب جیسے آپس میں سی دیے گئے ہوں۔ وہ خاموشی سے آریان کے بدلے ہوئے وحشیانہ رخ کو دیکھ رہا تھا جو اب کسی بھی رشتے کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جواب دو، گونگے ہو گئے ہو کیا؟ آریان نے ایک قدم اور قریب ہو کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کے لہجے کا زہر اب سارم کے چہرے پر تھپڑوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں 2 لفظ سننا برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے، کچھ لمحے پہلے تو مجھے انصاف کی طویل دلیلیں دے رہے تھے۔ کہاں گئی وہ تمہاری انصاف کی ترازو؟ کیا اب میں اس اپنے باپ کا وزن زیادہ لگنے لگا ہے؟ آریان کی آواز میں اب وہ فاتحانہ کار تھی جو کسی ہارے ہوئے انسان کو نیچا دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ سارم کی خاموشی کو اس کی شکست سمجھ رہا تھا، جبکہ سارم کی نظریں ابھی تک آریان کے اس جنون کی گہرائی ناپ رہی تھی جو اب ایک خطرناک موڑ پر مڑ چکا تھا۔ لاؤبالی پن اور جذبات کی روح میں بہہ کر بولے گئے الفاظ سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے آریان، کیونکہ ایسے الفاظ وقتی طور پر جھوٹی تسکین اور سکون ضرور دیتے ہیں مگر حقیقت میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سارم کا لہجہ اب اتنا ٹھہرا ہوا تھا کہ پارکنگ کا شور بھی جیسے تھم گیا ہو۔ اس نے آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنے گرفت میں لیا تھا۔ جذباتی الفاظ زندگیوں میں اتنا زہر بھر دیتے ہیں کہ پھر انسان نہ معافیاں مانگنے کے قابل رہتا ہے نہ صفائیاں دینے کے۔ میں خاموش اس لیے نہیں ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس لیے ہوں کہ میں تمہارے اس زہریلے لہجے کا حصہ بن کر اپنی برسوں کی رفاقت کو مزید آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر آریان کو سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم عبیرہ کو دوبارہ اٹھا کر لے جاؤ گے اور اسے کوئی بچا نہیں پائے گا؟ اگر ایسا سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری بھی غلط فہمی ہے۔ تم عشق نہیں کر رہے، تم اسے اپنی انا کی قید میں رکھنا چاہتے ہو۔ اور یاد رکھنا آریان، قید خانوں میں رہنے والے پرندے جیا نہیں کرتے، بس وقت گزارتے ہیں۔ آریان نے ایک سرد کہکا لگایا، ایسا کہکا جس میں تمسخر بھی تھا اور ایک عجیب سی درندگی بھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو اتنی سختی سے بھینچا کہ پورے سفید پڑ گئے، مگر اس کی نظریں اب بھی سارم کے چہرے پر گڑی تھی۔ رفاقت کی باتیں وہ کرتے ہیں سارم صاحب جن کے پاس کھونے کو کچھ ہو، میرے پاس تو اب بھی میری انا کے سوا بچا ہی کیا ہے۔
تم جسے عشق کہہ رہے ہو وہ تمہارے لیے ایک کتابی تعریف ہوگی، میرے لیے وہ سانس لینے کا وہ واحد راستہ ہے۔ آریان ایک قدم آگے بڑھا، اس کے لہجے کی کاٹ اب خنجر کی طرح تیز تھی۔ اور رہی بات پرندوں کی تو یاد رکھنا، کچھ پرندے اتنے خودسر ہوتے ہیں کہ وہ آزاد فضاؤں سے زیادہ اپنے شکاری کی قید کو عزیز رکھتے ہیں۔ اب ایران میری قید میں جیے گی یا مرے گی، یہ فیصلہ میں کروں گا، تم یا تمہاری یہ اخلاق سبق نہیں۔ سارم کے چہرے پر ایک تعصب بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے کوئی دانا شخص کسی نادان ہٹ دھرمی پر مسکراتا ہے۔ شک کا سب سے پہلا مرحلہ بدتمیزی ہوتا ہے آریان، اور وہ تم مرحلہ طے کر چکے ہو۔ جس دن تمہیں یہ سمجھ آئے گا کہ عورت جیتی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی، اس دن شاید تمہارے پاس پچھتانے کے لیے بھی کچھ باقی نہ بچے۔ سارم نے گاڑی کی چابی جیب میں ڈالی اور ایک نظر سامنے کھڑے آریان پر ڈالی جو غصے سے پکار رہا تھا۔ سارم کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون تھا جس نے آریان کو مزید آگ بگولا کر دیا تھا۔ سارم نے سکون سے کہتے ہوئے اپنا رخ موڑا اور اسپتال کی عمارت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سارم کے جوتوں کی چاپ پارکنگ کے فرش پر باقاعدگی سے گونج رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنی دھن میں چل رہا تھا۔ آریان کو اس کی بے نیازی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر زمین پر ماری اور تیز قدم بڑھتا ہوا سارم کے بالکل برابر آیا۔ اس نے چلتے چلتے اپنا بایاں ہاتھ سارم کے سامنے فضا میں لہرایا جیسے اس کی بات کاٹ رہا ہو۔ محبت میں انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، سارم کا اندازہ تمہارے ان نپے تلے سولوں میں نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ آریان اب اس کے پہلو بے پہلو چل رہا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھی۔ محبت میں انسان وہ کر جاتا ہے جو دنیا کی نظر میں وہ غلط ہو، مگر تم جیسے مصلحت پسند لوگ یہ بات کہاں سمجھیں گے۔ آریان نے تن سے اپنی گردن کو ایک طرف جھکایا، اس کی نظریں سارم کے سپاٹ چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سارم نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا تھا، اس کی نظریں سامنے ہسپتال کے داخلی دروازے پر تھی۔ اس کی یہی خاموشی آریان کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ آریان نے ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، مگر سارم کے اندر نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ سے نکل گیا تھا۔ شاید وہ بحث کر کے اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ آریان اب اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ لہجے کی تلخی انتہا پر تھی۔ جہاں سوداگری کا ڈر ہو وہاں عشق کا قدم نہیں ٹکتا۔ تم تو بس اصولوں کے تاجر ہو سارم، عشق کے روگ تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ اسپتال کے خودکار دروازے ایک سنسناہٹ کے ساتھ کھلے۔ سارم نے اندر قدم رکھا تو ایئر کنڈیشنرز کی ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا۔ آریان اس کے برابر چلتے ہوئے تیز قدموں کی تال سارم کی رفتار سے ملاتے ہوئے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی تڑپ اور سوال تھا جو اب جواب نہ ملنے پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ سمجھدار انسان جاتے جاتے ایک سوال کا جواب تو دیتے جاؤ۔ آریان نے سارم کے پہلو پر پہلو چلتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ سارم اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بولو، اگر تم محبت کے اس بھنور میں یوں گرفتار ہوتے تو تمہارا عمل کیا ہوتا؟ سارم کے قدموں کی رفتار میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے مگر خنجر کی طرح کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ صبر کرتا، خدا کی رضا پر سر چکا دیتا، مگر کم سے کم کسی بات کے مان کو یوں سرے بازار نیلام نہ کرتا جو تم نے کیا ہے۔ سارم نے ایک پل کے لیے گردن موڑی اور آریان کے تپتے ہوئے چہرے پر ملامت بھری نظر ڈالے۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ محبت پھولوں کی طرح ہوتی ہے آریان، اسے اس طرح مسل کر تماشا نہیں بناتے۔ میں جانتا ہوں میری باتیں تمہارے لیے فضول ہیں اور تم میری وضع داری کو میری کمزوری سمجھتے ہو، مگر یاد رکھنا محبت کو جتنا رسوا کرو گے یہ اتنی ہی تمہارے ہاتھوں سے پھسلتی جائے گی۔ اسپتال کی راہداری میں ان کے قدموں کی چاپ اب ایک بوجھل سناٹے میں بدل رہی تھی۔ سارم نے بات جاری رکھی۔ اس بار اس کا ہر لفظ ایک فیصلے کی طرح اٹل تھا۔ باپ کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے یار، یہ بات صرف میرے باپ کی نہیں، میں ہر اس شخص کے لیے یہی کہوں گا جس کی پیشانی پر شرافت کا پسینہ اور سر پر ذمہ داری کی دستار ہو۔ ذرا چند لمحوں کے لیے اپنی انا کو پرے رکھ کر سوچ، اگر کل کو تمہاری اپنی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ کوئی یہی سلوک کرے تب تم خود کو تبریز خان کی جگہ کھڑا کرنا۔ تو میرا دعویٰ ہے آریان تمہارا رد عمل اس سے کہیں زیادہ وحشیانہ ہوگا۔ آریان کے قدموں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئیں، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر سارم نے رکنا گوارا نہ کیا۔ مجھے یہ دوہری پالیسی نہیں آتی کہ اپنے لیے اصول ہوں اور دوسروں کے لیے اور ہوں۔ جا یار چھوڑ، میں اس وقت تیرے ساتھ مزید بحث کر کے اپنا ظرف چھوٹا نہیں کرنا چاہتا۔ تم جیسے لوگ جذبات کی روح میں بہہ کر یہ بھول جاتے ہو کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے یا دنیا لٹ رہی ہے۔
सारम ने अस्पताल के अंदरूनी दरवाजे के हैंडल पर गिरफ्त मजबूत की और आखिरी बार पलटकर आर्यान की साकत आंखों में देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्फाज सोच कर बोलो ताकि तुमसे कम रिश्तों का भरम तो बचा रहे। वो ये दो टोक बात कहकर सख्ती से कदम उठाता हुआ अंदरूनी वार्ड की जानिब बढ़ गया, जबकि इसके लफ्ज़ों के काट ने आर्यान के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। नॉवल सलीब सुकूत अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड्स बाकी हैं। मुमकिन है कि इससे कम भी हो। इख्तिताम के लिए दिल मजबूत रखें। कुछ लम्हे सुकून देंगे, कुछ तकलीफ भी देंगे। कहानी की खूबसूरती यही है कि जहाँ से कहानी शुरू हुई, इख्तिताम की कड़ियाँ भी वहीं आ मिलती हैं। खुशखबरी, अब आपको हयात इर्तिज़ा SA के तमाम नावल्स पढ़ने के लिए किसी भी बैरूनी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं। न्यू ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जल्द दस्तयाब होगा। 1 से 2 दिन में तमाम लिंक्स और सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएंगे। एपिसोड के लिए आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। आप लोगों को हयात इर्तिज़ा का नावल कैसा लग रहा है हुदा माजिद की वॉइस में आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।